webinar organized by GreatX. As the name suggests, GreatX is all about getting the greatness within you. GreatX has organized this webinar along with Bombay Stock Exchange, that is BSE Limited's SME and Startup. And I welcome you all on this very lucky day, because many of you would have had their children or siblings or cousins having their 10th standard results today. So we wish them all the best from GreatX and BSE Limited, whoever had their 10th standard results. And on this lucky day, you've taken a good decision. You've taken a good decision how 10 standards के बाद लोगों के खिड़कियां खुल जाती है. 10 standard के बाद लोगों की दरवाजे खुल जाते हैं, वो नए रास्ते पे चढ़ते हैं. You have taken a decision today to come here to know more about SME IPO, because इसके बाद आपके भी दरवाजे खुल जाएंगे. And I'm sure Alok, Arvind, the GreatX people and the Bombay Stock Exchange, we've got Ajay Bhai, we will all ensure that a new future, a bright future is there for all of us. That's for you, along with Bombay Stock Exchange and GreatX. Today we have got some wonderful panelists. Today we have got Sanjeet Kumar. Sanjeet is CEO of CARE. We will introduce all of us. We'll talk about, briefly about each one later on. We have got Singla Saab, Vinod Kumar Singla Saab, who's looking after the SME. He's looking after the SME and he's heading Jaipur Circle for SBI. And we have got our friend Arun Agarwal ji. Arun ji is, he has many hats. बहुत सारे चीजें करते हैं. So we'll also discuss about Arun Agarwal ji. But what we will do, we will start straight away with first a few set of questions, and before that, we introduce a little bit about Sanjeet, because Sanjeet has something which is very interesting. I was just talking. Sanjeet is with us. He's a graduate in economics from Shah Rukh Khan's college. That's Hansraj. So no wonder he's very popular with everybody. So he's done his graduation. After that, of course, he did his post-graduation in economics from Pune University. He's done his MBA from one of the top 10 MBA colleges, Symbiosis. He's worked with the best brands. He's worked with Deutsche, DBS, Bank of Nova Scotia, and he is heading CARE as the CEO, as a leader. He's taking care of the rating agency for CARE. So he's going to take care of all of you, all of us, for rating. So Sanjeet, we have one question also for you, but before that, we want you to introduce something briefly about yourself. Okay. Thank you, Sudeep. I think that was a very elaborate introduction. And yes, I'm a proud, student of Hansraj College, with so many celebrities coming from there. And yes, just to give my professional background. I mean, you have already talked about the organizations that I have represented in the past, whether it is the banking sector or even my current organization, CARE Ratings, where I am looking after the advisory business of the CARE Ratings, so advisory and research. So the company that I head is CARE Advisory Research and Training Limited, and as the name suggests, we have our parent company which looks after ratings. We look after predominantly the non-rating businesses, which is the business and the financial advisory business. On the research, we cover the industry, economic research, and we also, with so much of knowledge that we have already gathered along, we impart trainings as well, whether it be the classroom training or the online training. So these are the business areas that we operate in. I mean, we do sense there's a lot of there's enough vacuum there, especially in the MSME space, where most of our MSME friends struggle to get a proper advice, and and this is the space that we picked it up, that with the kind of know-how that we have within CARE Group, we should come forward and give some bit of assistance to our MSME friends in how do they navigate through the challenges that they face. And is there some most of the time we realize that there is just some small tweaking that is required, whether it be in the financial space or sometimes in the business space or the process that they run. And with some small tweaking, there can be a material gain that our MSME friends can achieve.
So that is the space that we are working right now, and we have been interacting with many of the MSMEs. I mean, literally every month, I think my company is connecting with nearly some 50 odd new MSME clients whom we are onboarding, being different kind of businesses for them. So it's a good experience that we have built up over the years. Good portfolio of MSME clients, and we're trying to help them through multiple channels, whether whenever they are either they're looking at some support on the debt side, or if they're looking at equity raising, or if they're looking at some bit of a business reorganization. Some cases, if they are already got into some problem, whether in the debt restructuring side. So even that space also we try to support them. So and if they're coming for a listing, so if they need some research, industry research reports, those are the other areas that we support them for. So it's a multifaceted role, and we try to provide all kind of services which any of our MSME client will look up to. In the current scenario where I'm sure most of our MSME clients are suffering because of the scenario that all of us are in, and it's not just them. I think everybody else is suffering as well. And I keep saying to my MSME clients that you are still somewhat better off compared to some of these large corporates, because some of the large corporates who have invested heavily in particular businesses, they are stuck in, they just can't move anywhere. Whereas an MSME client or MSME entity has a much better flexibility to shift around, in terms of their ability to reduce cost, in terms of their ability to restructure their businesses. So they have challenges which are different compared to the larger corporates, but at the same time, they do enjoy some benefits in terms of the flexibility that they have, which a large corporate do not enjoy, and they are stuck up. They have a huge capex. They can't do anything. Think of an issue with a five-star hotel guy. He's literally stuck up with nothing to do. Whereas an MSME client, he can revisit some businesses, change his delivery channel, change the customer base that they have been looking at in the past, and he can still think of reviving his business as quickly as possible. So I would always advise them to look at the advantages that you have, tap it up, improve, and build on from there, rather than be worried about the issues that most of them are facing. So anyway, I think I've taken more than what I wanted to. So wonderful. that's Sanjeev, some of the I have professional one background question that I have. Sanjeev, Yeah, Sanjeev, we'll take a break. We've got Singla ji and Arun. We've got to use them. And our young man, Alok, who's got all of us together, we're going to go back to him again and again. But I have one quick question before I go and visit everybody. I have a question for you, because you come from Care Advisory. Hum log jo bhi hai, let's have a mixture of English, Hindi. Anybody wants to do a English, Hindi, they can put their questions. Participants, आपके जो भी सवाल हो, आप टाइप कीजिए. We will always take those questions. संजीत, एक ही सवाल है, ये जो current stimulus measures जो government ने दी है, ये current stimulus measure for the MSME, उसके बारे में आपको क्या लगता है? I mean, what is your view? Just like that. Okay. If you tell us. Right. See, I mean, the government from their side, they have been trying to support, the MSME businesses in multiple ways. And I think, with the limitation that they have on the fiscal space, because the deficit numbers have gone up. So there is in terms of their ability to directly give cash to, MSMEs at a larger scale is limited. But, other than that, whatever else they could have done in terms of giving much more flexibility, in terms of fundraising, giving additional direction to the banking system so that they can be of help to the MSME clients by giving additional liquidity. So we already have a whole host of schemes which have come in place. And I think today the situation is that if any MSME client, they need money, there is ample opportunities available to them, whether it is through those collateral-free loans of 3 lakh crore which banking system has been disbursing. As far as we know, till 4th of July, out of those 3 lakh crore, I think 1.1 lakh crore has already been sanctioned. Nearly 50,000 odd crore has already been disbursed also to the MSME segment. So that is already picking a pace. In addition to that,
There are benefits to, stress companies. So in case the companies are under stress, the promoters can, tap into some the additional funding, which subordinate debt funding, which is available now, and they can borrow those money and use that money to infuse equity in the, the company that they have promoted. So that's an additional avenue typically available for stress companies, and where the promoters can leverage on their own net worth and borrow money. In addition to that, we have also have an additional scheme where, there is a fund of fund scheme which enables, equity infusion in select companies, the companies which are viable, which has potential to recover quickly from this pandemic. Those kind of companies can take benefit of it. They can, access this fund, and get some additional equity support, and this will enable them to go for a listing also in future, because once they get some additional equity from government scheme, they will be better geared to go to the market and raise, get listed, raise money in the market. So there are a host of schemes. Even SIDBI has come up with an additional fund, which is wherein they are picking up some of those. This is a separate fund which is used to give liquidity support to MSME clients. So today, I know my advice to our MSME clients is that you first assess yourself that, is your business model, viable in the change circumstances. I mean, that's very important, that, we need to be sure that there will be some businesses which will fail, some business model which may not survive post the pandemic, because, there is a material change in the business environment. But in case you are convinced that yes, your business model is viable, whatever tweaking is required in terms of changing one or two, or closing one or two business vertical, adding something new in the context of the, change the business environment, you should do that. And once you are satisfied and you are convinced that you have a viable business model, then the funding per se, if I look at the current environment, is not an issue. There are banks who are making a lot of things easier. So if they want to access funds, that is available. Even the equity market, if you look at the MSME, the performance, I think they are pretty much mirroring the, the larger market. So the, index is pretty favorable even today. And there are companies even, who are, thinking of IPOs and coming up. So it is still possible to raise equity. There are a lot of funds also in the market who are looking at, SMEs who can be viable in the long term, and they will be willing to put in money. So all the funding avenues are available. It is for you yourself to make sure, be convinced that yes, you have a viable business model, and then, a lot of these things will get taken care of. Wonderful. I think it was very nicely said. I think, Guy, my attendees, participants, friends, I think Sanjeet has really answered it. You have any further queries? Let's make it. You can chat. Ankush Munjal has already asked the question, which I will ask to Singla Saab. Sanjeet, thank you. We'll come back to you after half an hour. Sabko Yes. Yes. But you got to be here. So we're going to come back to you. We've got Arun, and we've got Arunji's huge expertise. But before that, we will go to Singla Saab. And let me tell you, friends, thank you. Let me tell you introduce briefly about Singla Saab. Singla Saab has got more experience than many of you who are attending here. Let me add you. Because startup, SME, we've got these young bloods like Alok, both young, and Arvind. But Singla Saab has got more than 30 years of experience. Singla Saab holds his degree from Punjab University, and he's also postgraduate in financial management. Singla Saab is also a CAIIB, and Singla Saab is currently, he's heading the Jaipur Circle and all the SME business. He's been in those areas and locations जहाँ से मैं personally बहुत डरता हूँ, because Jalandhar and Ludhiana, that's the place of my in-laws. So I'm sure many of you who are married, they'll know how it feels. So Singla Saab is from my in-laws' place of Jalandhar, and Ludhiana mein also he was best startup. So I'm gonna ask Singla Saab. He's been a banker, so it's good to see a banker in a t-shirt. Now the COVID times, these are about COVID times. These are in fact, Sudeep, I had told you there was some mishappening in my family, so that's why I have come to Punjab. So that's why. Okay, but good to see you. Good to see you. I'm so grateful to Alok, and I'm sure all my panelists would be happy to see a smiling banker from Punjab. And I hope everybody in your family is safe. I wish everybody in the
team is safe over here. And as I say, very rarely we get to see people smiling bankers and in such kind of with so much of experience, especially जब 30 साल की experience हो जाती है आपके पास एक CA IIB और आप PGDFM होते हैं तो आप में एक वो हो जाता है. But good to see you. Welcome here. Singla Saab, these are the COVID times. These are difficult times. Yes. And since these are the COVID times, Ankush already has a question. Ankush Munjal, one of the participants. I will ask that question. But the question is specifically, I want to ask you, what do you think is the impact of this COVID-19 which has come to, in the banking sector? I mean, this COVID-19 has been very painful time for us of self-discovery. So what is the impact on the banking sector, if you could tell us? And then I'm going to take you the next question, which is come from one of the participants, also meant for you. And that question is that ये जो MSME में जो Ministry of Finance ने इतने सारे 3 लाख करोड़ की बात की है सिंगला साहब, वो basically जो borrowers है उनके लिए ही है. That is what Ankush Munjal's प्रश्न है. What happens to somebody who wants to borrow now? So that is Ankush's question is later on as a participant. Other participants, you are welcome to ask. We have got very distinguished, experienced people like Arun ji and Vinod ji. So Vinod ji, what is the impact of banking sector, sir? In fact, I would say no sector of the economy and nobody on earth has been left untouched by this COVID-19. So everybody is affected. Of course, banking is intertwined with the day-to-day life of the people, especially the industry, commerce. So we are also affected. And which way affected? I will say for the time being, it looks as if things are not good. But I have seen the Indian economy to be very resilient. And I believe that very soon, because demand is picking up. And we when the COVID started in March, when the lockdown started, we could never fathom that in July, the employment levels as well as the industrial activity will pick up to these levels, which we are right now. So considering that, I'm very positive, though we are affected, but in the longer run, I believe we'll come out of it. And the banking sector has a duty to help the people, help the industry to come up from this negative impact of COVID-19. I'm sure very soon, by the end of the year, we all be at the same levels which we were before. Great. Singla sir, just taking forward the question of Ankush, कि ये जो borrowers है, MSME के जो Ministry of Finance के जो सवाल पैसे जो दे रहे हैं, it's primarily currently giving a reprieve to people who are already a borrowers. Okay, now what happens? Somebody who's not been a borrower, now can he take benefit of this, who's not been a borrower before, and take benefits of this Ministry of Finance ke jo new benefits that has come out? Definitely. We have not stopped loans. And in fact, every day when I am talking to my teams across Rajasthan, I talk of new business only. So wonderful. If though there are some setting up some industry, some people are themselves not very sure that when they will be breaking even. So if somebody can show me that if he is convinced that he will break even very fast and his industry will be relevant in COVID times also, then we are for it. Straight away, I'm saying yes to all these proposals. Wonderful. Thank you so much, Vinodji. I'm going to keep on coming back to you. There will be questions coming in. Before Vinodji, I will just introduce friends to another very senior person, my friend here with again lots of experience like Singlaji. With in fact, Arunji has got he's got close to 35 years of experience. Arunji also comes from a very famous college, like how we saw Sanjeet coming from Hansraj, Delhi. Arunji comes from St. Xavier's, Calcutta. So he had Lakshmi Mittal and he has got Aditya Birla and he's got Kamal Nath and Shashi Tharoor, all of them from St. Xavier's. But the most flamboyant of Indian personality, Vijay Mallya, is also from the same college, St. Xavier's, Calcutta, from where Arun Agarwal ji is. So therefore, we can see the smile in Arun Agarwal ji's face. Arun, let me tell you, as a fantastic, contributor, he believes in giving to the society a lot. Though he is, let me tell you briefly about Arun. He is a president
in the Marwari Federation. He is a president of the Civil Defense Development. He is a executive president of Rajasthan Trade and Industries. He is a national vice president for All India Vaish Federation, national secretary in Akhil Bharatiya Udyog Vyapar Suraksha Manch, secretary and spokesperson, Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, chief advisor, Samarpan Sanstha Jaipur, advisor, Rajasthan Affordable Housing Development Association. Then he is also a patron in all Rajasthan Dukandar and Mahasingh. I can tell you one thing about you friends, कि definitely Arun के wife has to take an appointment to meet Arun, and therefore she respects him more. And you know, yeah, because इतने सारे hats अगर Arun एक साथ पहन के रहेंगे, so she has to take an appointment to meet Arun. Arun ji, tell us something briefly about yourself, because I have the man for whom we were all waiting, Ajay ji. Ajay bhai is also joined in, but Arun, tell us something briefly about yourself. I have one question already for you, Arun, lined up for you. Haan ji sir, Arun ji. Thank you, Modra ji, for your good introduction of myself. Actually, after a long time back, I remember my college, St. Xavier's College, because I left Calcutta 30 years back. And I am ex-Xaverian. I am alumni member also, life member. Okay. So thank you for introducing me. Or thank you, Singla ji, Alok ji, Halalka ji, and all. अजय जी तो शायद नहीं आए मेरे ख्याल से. अजय जी नॉट जॉइनिंग. अजय भाई आ गए. अजय जी, संजीत जी, जैसा मेरे को बोला गया, सबसे पहले तो मैं ग्रेटेस्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल टू ग्रेटेस्ट हलालका जी कि उन्होंने इस तरह का ऑर्गेनाइज किया. और शायद संजीत जी लेफ्ट कर गए हैं मेरे ख्याल से, संजीत कुमार जी. तो उनका मैं धन्यवाद दूंगा. केयर का धन्यवाद दूंगा. केयर के सौजन्य से आज आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू. जैसा मेरे को बोला गया एमएसएमई के बारे में, और ये जो भी बैंकिंग का भी सिंगला जी जो बोले, बहुत अच्छी बात बोले. लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये कोविड-19 जो महामारी आई, उसमें इंडिया अफेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है. ऐसे में 20 लाख करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया. उसमें 3 लाख करोड़ हमारे एमएसएमई, चूंकि मैं एमएसएमई से बिलोंग करता हूँ, एमएसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 3 लाख करोड़ दिया गया. किंतु ये 3 लाख करोड़ सिर्फ उन एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को ही मिला है, न्यू लोन को नहीं मिला. न इसमें कोई रीसेटलमेंट हुआ, न रीस्ट्रक्चर हुआ. मैं सिंगला जी चूंकि स्टेट बैंक के हैं, गवर्नमेंट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक है, उनके पास तो फिर भी गाइडलाइन आ गई. लेकिन जो प्राइवेट बैंक आज हमारे कोई जाते हैं, लेने वाले कोई इंडस्ट्री जाते हैं, तो बैंक वाले साहब बोलते हैं हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं. ऐसे में बैंकों को एक नोडल अफसर बनाने की जरूरत है पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं इसमें. मैं यही बोलूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, उसको नोडल अफसर बनाए, उसको कोऑर्डिनेट करें. उसके अलावा सबसे बड़ा कारण आज इसको जो एग्जिस्टिंग लोन है, जो एनपीए के आसपास पहुंच चुके हैं इस कोविड के कारण, उनका लोन रीस्ट्रक्चर करने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है. बिकॉज रीस्ट्रक्चर नहीं होगा तो कई जो एनपीए नहीं है वो आज एनपीए हो जाएंगे कल. तो उनका रीस्ट्रक्चर, क्योंकि आज देखो ईएमआई माफ हुआ 6 महीने के लिए, 3 महीना हुआ, फिर बाद में माफ हुआ, लेकिन उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ नहीं हुआ. आज 90,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया द्वारा दिया गया. किंतु उस 90,000 करोड़ में, चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग, हिंदी में बोला हूँ. आर यू ऑल फॉलोइंग हिंदी? तो अदरवाइज आई कैन टेल इन इंग्लिश आल्सो. यू आर ऑल फॉलोइंग हिंदी ना मेरी? हाँ, कारण क्या कि मैं राजस्थान में रहने लगा तो राजस्थान में हिंदी चलती है. तो 90,000 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन एमएसएमई को उसमें से कुछ नहीं दिया गया. ऐसे में एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अपने मेक इन इंडिया, मेक इन राजस्थान की बात करते हैं. सीईओ वर्ल्ड मैगजीन जो यूएस की है, अभी पिछले 15 दिन पहले ही उन्होंने डाटा किया, उसमें राजस्थान को इंडिया के 10 स्टेट में टॉप में लाया गया कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल के कारण सबसे एरिया आज पूरे इंडिया में राजस्थान स्टेट का है. और इंडिया को भी 5 स्टेट में लाया गया पूरे वर्ल्ड में. इसका कारण मैं बता दूंगा. आज हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की पॉलिसी, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया अभी, इंडस्ट्रियल पोर्टल. उसमें 3 साल तक कोई भी नई इंडस्ट्री जाएगी, उसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं. एक सिंपल फॉर्म भरना है, फिलअप करना है और उसको गवर्नमेंट को देना और अपना उद्योग चलाए. तो उसके कारण राजस्थान का सीईओ वर्ल्ड मैगजीन में नाम आया. ये एक चांस है अपने लिए. जो चाइना का लफड़ा चल रहा है आज पूरे वर्ल्ड में के साथ, इंडिया का विशेषकर, क्योंकि चाइना का सारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंड है. वहाँ कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लोकतांत्रिक देश नहीं है. वहाँ के यदि इकोनॉमिक गड़बड़ाती है, चाइना को बुलेट के साथ जवाब देने के साथ साथ हमको अपनी इकोनॉमिक्स से जवाब देना पड़ेगा. ऐसे में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे इंडिया को
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा, SOP बनाना पड़ेगा, हर जगह नोडल अफसर निकलना, फैसिलिटेटर सेंटर बनाना पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि हमारे इंपोर्ट में क्या आइटम, हमारी चेन बनानी पड़ेगी पूरी। आज सप्लाई चेन जो है, क्या इंपोर्टर आज टीवी बनाते हैं तो टीवी के लास्ट पार्ट तक बनाना पड़ेगा। अपने IT सेक्टर में जाते हैं तो IC बनती है, लैपटॉप, ये मोबाइल के छोटा सा सेल का उदाहरण देता हूँ, छोटा सेल होता है 20-30 रुपया 50 रुपये का आता है, और इंडिया में वो प्रोडक्ट को वहां तक अपने को लास्ट तक जाना पड़ेगा, जब ये आत्मनिर्भर और MSME का वास्तव में सही फल होगा। तो इसको सबसे बड़ा जो बैंक वाले हमारे सिंगला जी बैठे हैं, मैं यही करना चाहूंगा कि वो भी आगे तक बात पहुंचा सकते हैं हमारी MSME की, हमारी इंडस्ट्री की। ये जो एग्जिस्टिंग लोन है उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उनको रीशेड्यूलिंग किया जाए। मेरी सेंट्रल मिनिस्टर से भी BC काफी हुई है, काफी सारे सेंट्रल मिनिस्टर से रोज ही होती है, मैं उनको भी ये सजेशन दे रहा हूँ, वो भी ऊपर उठा रहे हैं। और क्योंकि बैंक के हमारे अधिकारी हैं और केयर के हैं, ग्रेटेक्स के हैं, हरलालका जी जैसे संजीदा पर्सन है, और आप मोत्रा जी तो खुद ही आप बहुत लर्नेड आदमी है, मेरी आप तो पहली मुलाकात हुई है आपसे और आपकी बातों से लगा, तो मैं यही बोलूंगा कि ये इंडिया के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक मौका है, क्योंकि भारत का जो इंडस्ट्री से या जो व्यापारी है वो सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम कर सकता है। वर्ल्ड में कहीं भी 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी कोई नहीं दे सकता, चाहे वो लेबर हो, वर्कर हो और चाहे मालिक हो। लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ चीप लेबर मिलता है। चाइना आज क्यों डेवलप हुआ, वहां भी चीप लेबर मिलता है, इंडिया में तो इंडिया क्यों नहीं डेवलप होगा। लेकिन पॉलिसियां जो गवर्नमेंट की है उसको वास्तव में धरातल लाना पड़ेगा। जो AC कमरे में बैठ के खाली पॉलिसी बन जाती है उससे अब काम नहीं चलने वाला है। ग्रेट। हमारे BSc के भी जो जुड़े हुए हैं, BSc का तो मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने SME के लिए जो ये पॉलिसी लाया अभी कुछ साल पहले ही, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो यहाँ जयपुर में भी इनका कराए थे कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया 2 बार 3 बार, और काफी लोग जुड़े हैं। ये हमारे छोटे छोटे MSME इंडस्ट्री वालों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में अब जो पॉलिसी बने उसमें हम पूरे इंडिया के लोगों को बैठा के उनसे सलाह मशवरा करके उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको बैठा के बात करके करें तो वो जाके धरातल में, और उसको रोड मैप बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म रोड मैप। ये आज चाहेंगे कि आज चाइना का करके हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, पूरा इंडिया पूरे देश में जाएगा, ऐसा कुछ जल्दीबाजी में नहीं होने वाला। उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा, 2 साल का, 5 साल का, हो सकता है 10 साल तक को लग जाए उसको करने में। लेकिन यदि करेंगे सच्चे मन से, दिल से, यदि ब्यूरोक्रेट सच्चे दिल से इसको भावना से करेंगे कि हमको इंडिया को बढ़ाना है। हमारे इंटरेस्ट रेट का एक मैं बात जरूर बोलना चाहूंगा, आज अपने सेविंग में 3-3.5% इंटरेस्ट रेट आ गया, फिक्स डिपॉजिट में भी 5-6% आ गया, और लोन कोई भी 9%, 8% से 10% नीचे नहीं मिलता है। तो रिवर्स रेपो रेट की जैसे रेट हमको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसी रेट में ये सब। आज इंडस्ट्री को चलाने में 2 ही चीज का मेन फैक्टर होता है, एक डीजल पेट्रोल फ्यूल जो होता है, दूसरा होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस में जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा जब तक हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड से। वेरी नाइस। आई थिंक अरुण जी ने बहुत पते की बात की है, उन्होंने हमको पॉलिसी डिसीजंस जो है करेक्शन करने के बारे में बात की है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हम लोग कैसे हमारे MSME को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके ऊपर भी अरुण जी ने आपको सलाह दी कि अगर हमारी देश को आगे लेके जाना है, इन्होंने क्या बताया अरुण जी ने, लेबर इंपॉर्टेंट है और वहीं पे हमारा MSME हैज टू बी प्ले अ बिग रोल, बिकॉज हमारी देश की इकोनॉमी की 90% जो लेबर है जो सर्विस या इंडस्ट्री में है वो MSME में है। बिकॉज यूनिकॉर्न कितने हैं, द यूनिकॉर्न्स कैन ओनली एम्प्लॉय 5 to 8%, बाकी SME और MSME करते हैं। एंड आज आपके पास कंपनीज है, आप उनके बारे में जानना चाहते हो, आप अपना कंपनी को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने कंपनी के लिए फंड रेज करना चाहते हो, ठीक है ना, और आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हो। मतलब आज आपने एक अपनी कंपनी खड़ी है। आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, व्हाई वी हैव गॉट हियर टुगेदर? हमने इसलिए इकट्ठा किया है कि अगर हमने गाड़ी खरीद ली है, गाड़ी खरीदना इनफ नहीं है, वो गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, वी नीड अ वर्किंग कैपिटल। आज हमने एक अच्छी सी बिल्डिंग बना ली है, होटल बना लिया, उससे पैसे नहीं है, उसमें होटल में पर्दे, खाना, लोग चाहिए, तब जाके लोग आके करेंगे। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। आपको अपनी कंपनी बढ़ानी है तो पैसे चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अजय भाई who's the main anchor। जैसे he is the anchor, जैसे हर मॉल में एक एंकर शॉप होता है, so जैसे सिंगला साहब is the anchor for the SME from the banking sector for us। आज हम BSc SME से, the man who set up BSc SME, I'm thankful to अजय भाई। अजय भाई के बारे में क्या बताना है, आप लोग सब SME में कंपनी सेटअप किए हैं, आप लोग को सब एक इच्छा है कि रिजल्ट
to grow your company. Before I hand over to Ajay Bhai, there are two things I will do. I'll tell you briefly about Ajay Bhai, क्योंकि अजय भाई के ऊपर बोलने जाएंगे तो कम पड़ेगा, तो we'll not take that time. और दूसरा, हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं उसके लिए मैं एक पोल चलाऊंगा, ठीक है? सवाल ये है, but before the सवाल, I'll just tell you briefly about Ajay Bhai. Ajay Bhai has spent more than 26 years in the capital market. सबसे बड़ी custodian Ajay Bhai ने he was educated with that. He was with stockholding. He was always in a leadership position, at the top position. 1996 में जब अजय भाई ने join किया BSE, he joined as the head of arbitration and business development. तो आदमी की शुरुआत ये जगह की शुरुआती from the top हुई. But that is not important. What is important is what Ajay Bhai did from there onward. आज हमारी इकोनॉमी और हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए, जैसे मैंने कहा, 90% एम्प्लॉयमेंट आती है फ्रॉम एसएमई सेगमेंट्स. 2012 में अजय भाई, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम समबडी थॉट कि कंपनी तो सबके पास है, सब बैंक से पास जाते हैं बैंक से पैसा उठाने के लिए, बट देयर इज मोर देन दैट. एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो देयर बिजनेस. सबको एक वैल्यूएशन चाहिए, सबको एक इज्जत चाहिए. सब जो है, हर आदमी, छोटा आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए बड़ा होना चाहता है. सो वी शुड गिव अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अ प्लेटफॉर्म जिसमें वो अपने कंपनीज को दिखा सके. तब उससे पहले क्या होता था, 2012 से पहले, आप बड़े कंपनी हो, आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ा कैनवस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी. व्हाट अबाउट पीपल, जिसको छोटा कंपनी है, ही आल्सो वांट्स टू शोकेस, वो छोटे से बड़ा होना चाहता है. एंड दैट्स व्हाट अजय भाई डिड. 2012 में अजय भाई started the SME exchange under Bombay Stock Exchange, जो BSE का BSE SME segment जिसको हम M कैटेगरी शेयर बोलते हैं. जैसे A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, Z कैटेगरी, M कैटेगरी में आ जाता है SME. तो he started the SME segment. He's headed the SME segment. 2012 से आज तक अजय भाई has got 322 companies listed in the exchange. आज ये exchange अगर देखने जाए, 32,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, this exchange has got a market cap. And what he has done after that, he's also last year 2018 में he also got कि उससे भी जो छोटे कंपनी है, जो स्टार्टअप कंपनी है, उनमें भी ख्वाहिश होती है. पहले क्या होता था कि मूवी नहीं चलती तो आपको सिनेमा में ही जाना पड़ता था. सिनेमा में नहीं गए तो आपकी करियर खत्म हो गई. फिर आया टीवी, and because of TV you had a person like a Shah Rukh Khan and Sushant Singh who started from TV and went on to become stars. So पहले से BSE हुआ करता था. So then you had this TV. So you can say SME started अजय भाई, जहाँ पे वहाँ पे शाहरुख खान discovered हुए, सुशांत सिंह discovered हुए, and then they went to go to the canvas. But then around 2018, not everybody gets a chance in television. So then there are web series. So जैसे startup होती है, वैसे ही he started the startup in 2018, जहाँ पे एकदम छोटे कंपनी can come and grow. And 2018 से आज तक already 5 कंपनी लिस्ट हो चुकी है. एंड ये 5 कंपनी अगर आप देखे जाएंगे तो 22 करोड़ रुपए इन्होंने रेस किया है. एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस स्टार्टअप इज ओनली 72 करोड़. 322 करोड़ एसएमई में, स्टार्टअप में 5 कंपनी, 322 कंपनी एसएमई में, इसमें 5 कंपनी, एंड so much. So I can keep on talking about how Ajay Bhai has mentored, but आप लोग आए हैं, there are questions. All of you want to know how to grow your company. And the first poll, let us come. Before that, हम लोग इसलिए आए थे, what is the best way to generate capital for expansion? आपको क्या लगता है? Equity, debt या combination of debt of equity? What is the first question is quiz? क्योंकि हम इधर लिस्टिंग के बारे में बात करने आए हैं. What is the best way to generate capital? अगर आपको अपनी कंपनी को बढ़ानी है, प्लीज चूज कीजिए कैसे कंपनी को बढ़ा सकते हैं. I mean, we all know about the way the Reliance has grown and Infosys has grown and HDFC has grown and Kotak has grown. So choose A, B, C. आपकी कंपनी को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. Guys, please choose.
Arvind, how long is the timing you have given? So only just 5 seconds we are waiting. After that, we will close it. So in 5 seconds, you get the answers. So we'll all get the answers. Ajay bhai, once we get the answer, we'll come back to you, Ajay bhai. There are a lot of questions for you. But before we ask the questions, Ajay bhai, we want you. Okay. We'll get the poll results. Yes, Arvind. What is the poll result, Arvind? Why don't you share with all of us? Okay. So we have 18% who thinks equity is the best one. They think 4% of us think debt is the best answer. And 78% जो सही है, मेरे ख्याल से, I think a combination of a debt and an equity. And that's a सही answer मेरे हिसाब से. You know, when we look at a Reliance, as I said, when we look at a Infosys, HDFC, Kotak, any other company, you know, Nifty के जितने भी 50 companies, BSE, Sensex के जितने भी 30 companies, they have a combination of debt and equity. So of course, equity has its own benefit, and that's the reason you need to get into SME IPO. Ajay bhai, you know what we need, your guidance. All of us have come here to listen to you. You know, companies take a lot of pride in getting listed in BSE. Or you know, ये relation में, tell us something about the SME exchange, and you know the benefits of listing. I mean, nobody can tell us better than that. SME exchange के बारे में थोड़ा हमें बताइए और benefits के बारे में बताइए सर. बहुत बहुत धन्यवाद. Let me speak in Hindi. I think it is okay to everyone. Perfect, sir. Absolutely. So no issue. I think I will keep on mixing both Hindi and English right, so sir. that everyone can understand. तो हमने ये जो आप सभी लोगों को पता है कि we have as a stock exchange, BSE has completed 146 years. Almost we are in existence since 9th July 1875. So yesterday was our foundation day. But informally, it was since 1820. This stock exchange was there. If you see the journey of the stock exchange, many companies came, few got vanished because of the various competitions and all those things. And finally, today, आज के दिन में 5,000 कंपनियां यहाँ पे listed है, और almost जो है इन 5,000 कंपनियों ने 1.8 ट्रिलियन डॉलर की एम्पायर बनाई. 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है. तो इतनी जो है, and we are the one among the top 10 stock exchanges in the world. Okay, so yes, we have to go a long way, but you know, with the culture that is existing in our country, and the way awareness is not there about the equity market or about the equity in the Indian entrepreneurs, we have not seen many companies coming onto the stock exchange, getting themselves listed and raising funds. अगर आप देखिए पूरा, अगर डायनामिक्स देखिए अगर पूरे कंट्री की, तो मेरे ख्याल से कंपनी की शुरुआत होती है खुद के पैसे से, एंड देन फाइनली थोड़ी बड़ी हुई तो बैंक्स में गए या एनबीएफसी में गए, वहां से पैसे लाए, और वही कहानी चलती रहती है. कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे डर रहते हैं. एक जो नॉर्मल मेंटेलिटी हमने देखा है कि लोग जो है जैसे कंप्लायंसेस के नाम आते हैं, उनके पैर हाथ कोल्ड हो जाते हैं, उनको डर लगने लगता है कि भाई ये कंप्लायंसेस लिस्टिंग करने के बाद होगा. और इसी तरह से उनको समझाया भी जाता है कि आप जितनी कम कंप्लायंसेस में अपनी दिमाग लगाओ, उतनी आपकी कंपनी अच्छी रहेगी और अपने शांति से आप बिजनेस करो. कंप्लायंसेस करना मतलब अशांति को न्योता देना. तो इन चीजों के चलते बहुत सारी कंपनियां हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने अपने आप को लिस्टिंग करा ली, उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया. जो नहीं कराए वो बैंक की फंडिंग वगैरह लेकर के धीरे धीरे अगर आप देखें तो बढ़ रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन द टाइम इज बैड, व्हेन द इकोनॉमी इज बैड, you know, the first thing that this company suffered is it was the servicing of the loan. जो लोन की सर्विसिंग का जो है ना एक बहुत बड़ा इशू आता है. And then we keep on seeking moratorium and NPAs start happening and so on so forth. So what was the need of creating this SME exchange? We know that India has got lots and lots of SME, whether informal, whether working in an informal atmosphere or you know, formal atmosphere. These companies are you know, there, so many companies are there.
So it is very much important for the stakeholders to ensure that these companies should grow. They become large corporates, they become big companies, बड़ी बड़ी कंपनियां बने, करोड़ों लोगों को रोजगार दे, और जो है बैंक के ऊपर और खुद के बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो ज्यादा दबाव ना डाले. So that's why there was a need to create this SME platform, क्योंकि अभी फिर जो है compliances को लेकर के भी लोगों में काफी डर रहता है. तो ये डिसाइड किया गया कि ऐसी स्टॉक एक्सचेंज बनाई जाए जहां पे कंपनियां आसानी से अपने आप को लिस्ट कर सके, उनको ज्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करना पड़े, और जो पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस है, पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो उनको अपनी सारी सबमिशंस करनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कितना कम से कम रखा जा सके. तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ये एसएमई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया. जो अभी एसएमई प्लेटफॉर्म के जो नियम है, जो इनके कानून है, वो ये है कि कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे है, कोई भी कंपनी हुज पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल इज बिलो 25 करोड़, दे कैन गेट देमसेल्फ लिस्टेड ऑन टू द SME प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ये एक क्राइटेरिया है. दूसरी क्राइटेरिया ये है कि कंपनी की मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट, जिसको कहते हैं मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट, वो 1.5 करोड़ की होनी चाहिए. और तीसरी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कंपनी जो है कम से कम 3 साल जो है एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में होनी चाहिए, और वो 3 साल में से इन एनी वन ऑफ द 3 years दे शुड हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट. So these are the 4 requirements that a company has to fulfill. If any of the company is fulfilling those 4 conditions, they can get themselves listed onto the SME platform of the stock exchange. बहुत सिंपल नियम रखे हैं. इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि हमने जो पोस्ट लिस्टिंग जो आपको कंप्लायंसेस करने होते हैं, उसको भी वो भी हमने काफी कम कर दिया. हमने ये बोला कि भाई आपको जो है हर 6 महीने पे अपना रिजल्ट जो है, अनऑडिटेड रिजल्ट, आपको ऑडिटेड कराने की जरूरत नहीं है. हर 6 महीने पे आपको जो है अनऑडिटेड रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज में देना है. और साल में जो है, 1 साल में आपको जो है, जैसे आप एनुअल रिजल्ट बनाते हैं, अनलिस्टेड स्पेस में भी आप अपना ऑडिटेड रिजल्ट बनाते हैं, आप इस स्पेस में भी जो है एक ऑडिटेड रिजल्ट ईयरली बेसिस पे आप बना करके BSE में सबमिट कीजिए. तो ये नियम हमने काफी कम कर दिए. इसके अलावा हमने ये कहा कि जो आपकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब किस इन्वेस्टर्स के पास कितने शेयर्स है, वो आपके रजिस्ट्रार के पास रहता है. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ इशू कहते हैं उसको, उसके पास रहता है. आप उससे मंगाएं और वो हमारे पास सबमिट करें. तीसरा जो उनको करना है वो ये करना है कि एक बोर्ड का गठन करें, और इस बोर्ड में 1/3 जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, मतलब ये कि वो डायरेक्टर जो है आपके साथ कोई उनका फाइनेंशियल या ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, या वो कोई आपके एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए. ऐसे व्यक्ति को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं. मतलब वो आपके शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए, वो आपके एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए. इनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो आपका एक बोर्ड का गठन होना चाहिए जिसमें 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. चौथा जो है कि आपके कंपनी में कोई भी अगर बड़ी घटना होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो आपको विद इन 7 days स्टॉक एक्सचेंज को या इमीडिएटली आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है. तो ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं जो काफी सरल हैं. इसके अलावा आपको एक कंपनी सेक्रेटरी पेरोल पे रखना पड़ता है. तो ये आपके पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंसेस हो गए. अभी ये जो आप कंप्लायंसेस करते हैं या रिजल्ट लेके आते हैं, ये रिजल्ट आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप हमको अपने रिजल्ट भेज दीजिए और हम अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देंगे, और आप अपने वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर लीजिए. तो ये नियम जो है काफी सिंपल नियम हमने करके रखे हैं. जो अब एक प्रश्न जो प्रमोटर के दिल और दिमाग में हर हमेशा आता है, वो ये आता है कि भैया हमारी कंपनी चल रही है, हम बैंक से पैसे ले रहे हैं, हम कंपनी में कुछ पैसे कमा रहे हैं, हमारी चल रही है. तो देखिए ये सारी चीजें तो चलती रहती है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. हमने विगत 7 सालों में, लास्ट 7 years में, मैं कम से कम 30,000 प्रमोटर्स से मिल चुका हूँ. उनके 30,000 प्रमोटर्स की मैंने बैलेंस शीट देखी हुई है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि 95% कंपनियों में, 95% कंपनीज में हमने देखा कि टॉप लाइन जो है, मतलब जो उनका रेवेन्यू है, वो 5 करोड़ से लेकर के 600 करोड़ 700 करोड़ तक था. लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 5 लाख से या 2 लाख से शुरू हो करके 2-3 करोड़ रुपए तक जा करके रुक जाती है.
इससे ज्यादा प्रॉफिट उनके बैलेंस शीट पे आ ही नहीं रहेगा। टॉप लाइन भी बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने जो परेशानी उसमें देखी, वो हमने ये परेशानी देखी कि वो कभी कभी जो है अगर सडनली मान लीजिए उनके सेक्टर के लिए वो कोई पॉजिटिव चीजें हो रही है, जैसा हमने रियल एस्टेट में देखा, या हम कभी स्टील सेक्टर में देखते हैं, या कभी सीमेंट सेक्टर में देखते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास इक्विटी जो है उसको लिवरेज करने का कोई साधन नहीं है क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है, तो क्या करते हैं, लोन लेने के लिए अग्रसर होते हैं, लोन लेने के लिए जो है भागदौड़ काफी करने लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने जाते हैं। अब देखिए इकोनॉमी हर हमेशा ऊपर के रास्ते पे तो नहीं जाएगी, कभी ना कभी वहां पे ठहराव आएगा, कभी ना कभी वो डिक्लाइन होगी, नीचे की ओर आएगी। उस समय जो है क्योंकि डिमांड कम हो जाता है, मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, फिर जो है आपको जो है वो लोन सर्विसिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जब लिस्टिंग के लिए आते हैं तो हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि भैया आपने जो है बैंक से तो पैसे उठाए, ठीक है, अच्छा काम किया, कोई बुरा नहीं है उसमें, ऐसे ही लोग बढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके पास ये स्टॉक मार्केट का भी रूट है, आप अपने शेयर्स यहाँ पर लेकर के आइए, इन्वेस्टर को दीजिए, पूंजी जुटाइए और अपनी कंपनी को ग्रोथ कीजिए, एक्सपेंशन कीजिए। और आपको अगर लगता है कि आपने लोन काफी ले लिया है, थोड़ा कम करने की जरूरत है, तो उसको भी कम कीजिए। तो आपको एक ये फायदा हो जाता है कि आप इक्विटी अपनी डाइल्यूट करके लोगों में, इन्वेस्टर्स में बेच करके आप जो है पूंजी जुटा रहे हैं। दूसरा, और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि इक्विटी जो फंड्स आता है उसको सर्विसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं उस पर देना है, आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो सर पे आपके तलवार हमेशा लटकता है, वो तलवार हट जाता है, तो आप जो है एकदम निश्चिंत होकर के अपने बिजनेस को कर पा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो है, क्योंकि आप जो मैंने आपको बताया जो बैलेंस शीट का प्रॉब्लम है, अब आपके पास इक्विटी आया, तो इक्विटी और डेट का रेशियो सही होने के चलते जो आपको फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कैश आउटफ्लो कम हो गया है। जो कैश बाहर जा रहा था इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग द डेट फंडिंग, वो कम हो रहा है। इक्विटी आई, आप इक्विटी से बिजनेस कर रहे हैं और इक्विटी को आप सर्विसिंग नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो लोगों में आपके प्रति विश्वास होता है, और जो ज्यादा प्रॉफिट होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट भी उस रूप से कम होते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कंपनी लिस्टेड स्पेस में होती है और जो अनलिस्टेड स्पेस में होती है, उनके इंटरेस्ट रेट में 50 से 150 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता है। ये चीज है। तीसरी चीज है जो हम कितनी बार ऐसा समझ पाते हैं कि एमएसएमईज में ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहता है। मतलब उसमें अगर आपको कोई भी चीज पाना है तो बार बार प्रमोटर को फोन करना होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स कम होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी जो पावर है वो प्रमोटर्स के हाथ में कंसंट्रेटेड हो गया है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इवन बैंक फाइनेंसिंग वाले होते हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट का अभाव रहता है। ऐसा लगता है कि भाई एक ही प्रमोटर के पास बार बार जाना है, ना उन्होंने डेलीगेशन किया हुआ है पावर, ना कुछ किया हुआ है, और एक परसेप्शन भी बनता है। हो सकता है आपने डेलीगेट किया होगा पावर, लेकिन क्योंकि आप लिस्टेड स्पेस में नहीं है तो लोग को पता नहीं चल रहा है। अब जब आप लिस्टेड स्पेस में है तो क्या होता है कि आपकी कंपनी, एक तो क्या, हर 6 महीने पे आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी कंपनी में आई, एक परसेप्शन बनता है कि आप जो है पावर भी डेलीगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बोर्ड का भी आपने गठन कर दिया, एक ऑडिट कमेटी का भी गठन कर दिया, तो लोगों का परसेप्शन बिल्ड होता है कि भैया कंपनी में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो इन्वेस्टर्स या बैंकर्स जो भी होते हैं, वो उनको आपको पैसे देने में कंफर्ट आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिस्टिंग करने के बाद जो है कंपनी की विश्वसनीयता और प्रमोटर की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स एंड द कंपनी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तीसरा बेनिफिट होता है जो कंपनी लिस्टिंग होती है। जो चौथी बेनिफिट है वो ये होता है कि आपकी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो अभी लोकल कंपनी थी, शायद आप जयपुर में होंगे या शायद आप किसी भी छोटे मेट्रो, नॉन मेट्रो सिटीज में होंगे, कहीं पे बिजनेस कर रहे, लोग आपको नहीं जान रहे, आप क्या बिजनेस कर रहे हैं वो आपको पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ रहा है। जब आप लिस्टेड स्पेस में आते हैं तो धीरे धीरे जैसे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपको देखने लग जाते हैं। और बहुत सारे जो आपके क्लाइंट्स है, वेंडर्स है, उनको भी जब आपके कार्ड में लिस्टेड लिखा हुआ दिखता है तो उनको भी आपके ऊपर विश्वास बढ़ता है, आपको रिपीटेड ऑर्डर्स बढ़ते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि लिस्टिंग करने के बाद जो है कंपनी की विजिबिलिटी जो है
वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सारे लोग आपको समझने लग गए, पहचानने लग गए, जानने लग गए, सारी चीजें होती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। पहले लोग उषा फैन लेते थे, पोलर फैन लेते थे, इस तरह की चीजें करते थे। हेवेल्स की तरफ कोई नहीं जाता था। हमने जब देखा 40 रुपये प्राइस था हेवेल्स का, लोगों को इतना हेवेल्स के प्रति जानकारी नहीं थी। जब 400 रुपये हो गया हेवेल्स का, तो सारी दुनिया हेवेल्स हेवेल्स करने लग गई। उसके बाद जब 600 रुपया पहुंचा, तो सारे लोग जो है हेवेल्स के वायर, हेवेल्स के फोन, हेवेल्स के अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, ये ज्यादा खरीदने लग गए, बाकी कंपनियों के कम खरीदने लगे। तो ये देखिए 2 वे प्रोसेस हो गया, कंपनी की अचानक विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, ये एक फायदा हुआ। जो 5वां फायदा है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है, जो अपने बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं। कभी कभी आप इस स्थिति में है कि ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उसको आप कैसे अपने साथ जोड़ सके, उसमें कैसे लॉयलिटी ला सके, ठीक है, उनमें अपनापन कैसे ला सके। तो एक माध्यम है, ओके, जिसको हम ESOPs कहते हैं। मतलब कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, उनको देती है। अब ये कागज का टुकड़ा होता है शेयर, उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर वो लिस्टेड नहीं। हाँ, अगर वो लिस्टेड है, उसकी वैल्यूएशन दिख रही है, तो एम्प्लॉयज को भी लगता है भाई कुछ तो दिया हमको। तो आप अच्छे एम्प्लॉयज को ESOPs के द्वारा अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रख सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि आपकी पेपर, आपकी इक्विटी, आपकी जो शेयर सर्टिफिकेट है, जो कहीं हो सकता है आपके CA या CS, या कहीं आपके घर में किसी लॉकर में होगा, उसमें धूल पड़ा हुआ होगा, शायद घर के कोई सदस्य अलमीरा वगैरह खोलते होंगे तो सोचते होंगे ये क्या कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कभी कभी खो भी जाता है, तो उसकी वैल्यू आपको आज तक समझ में नहीं है। जब आप लिस्टिंग करा लेते हैं, तो एक तो क्या है, वो सर्टिफिकेट रखने की आपको जरूरत नहीं है, वो सारे डीमेट फॉर्म में आ जाते हैं, फिजिकल से डीमेट हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर जो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, आज क्योंकि लिस्टिंग हो गई है, तो आपकी उस शेयर्स की जो है कीमत 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, जैसी प्रॉफिट है कंपनी की, वैसे उस शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। जो आपकी कंपनी में कैप एसेट्स हैं, वो तो एक है, आपकी जमीन की वैल्यू, आपकी प्लांट की वैल्यू, आपकी मशीनरी की वैल्यू, वो तो जो है सो है। लेकिन लिस्टिंग कराने के चलते आपने एक दूसरी वैल्यू भी एडिशनली खड़ा कर, ये शेयर्स की वैल्यू। तो आपका ये एक जो है ना, जो शेयर्स, जो इक्विटी हम कहते हैं, उसको आप करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई इस देश में 2 ही व्यक्ति नोट छापता है, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर छापता है, उसकी साइन रहती है। आप 2000 रुपये का नोट लेते हो, ये 500 का नोट लेते हो, या कोई भी नोट लेते हो, इसलिए नोट लेते हो कि RBI बैंक के गवर्नर का साइन है, और उसमें वो इंग्लिश में लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 2500 और 100 रुपए नोट, वॉट एवर द डिनोमिनेशन में भी। और हिंदी में भी लिखता है कि मैं धारक को 500 या 2000 रुपया जो भी है अदा करने का वादा करता हूँ। तो एक नोट जो है वो छाप रहा है RBI बैंक का गवर्नर, ठीक है। अब वो क्या है, करेंसी क्या है, ये रुपये क्या है, ये रुपये का वैल्यू जो है, आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है तो रुपये का वैल्यू बढ़ जाता है, आपकी इकोनॉमी खराब होती है तो रुपये का वैल्यू घट जाता है। ये रुपये कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इक्विटी है, ठीक है, देश की इक्विटी है जो ट्रेड हो रही है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर उस पर साइन कर रहा है। लेकिन विद द टाइम, समय के साथ साथ उस रुपये की वैल्यू घटते जाती है 5 साल के बाद। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो फिर नोट छाप रहा है, आपकी शेयर सर्टिफिकेट आप क्या कर रहे हैं, कंपनी को लिस्ट करवा के दुनिया को दे रहे हैं, भैया ये मेरी कागज का टुकड़ा है, ये आप लो। तो आप भी नोट ही छाप रहे हैं, आप 50 रुपये में नोट छाप रहे हैं, 75 रुपये में नोट छाप रहे हैं, 100 रुपये में नोट छाप रहे हैं, आप ये सब नोट छाप करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। लेकिन आपकी ताकत देखिए कि आप उस शेयर सर्टिफिकेट में जो भी आप दे रहे हैं, 50 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, जिस भी प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी ये लिख करके नहीं दे रहे हैं कि भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको 50 रुपये देने का, 100 रुपये देने का, 200 रुपये देने का। मतलब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से भी स्ट्रांग है, ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप बिना कोई वादा किए पैसे उठा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस शेयर सर्टिफिकेट को बहुत ज्यादा ताकत दे दिया और कोई वादा भी नहीं किया। अब 50 रुपये का शेयर आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के साथ 100 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, तो जो इन्वेस्टर्स बहुत सारे रहते हैं कंपनी में, वो उनको तो फायदा होता ही है, लेकिन क्योंकि आप प्रमोटर हैं, आपके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं, तो आपकी नेटवर्थ भी बढ़ती रहती है, और वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है।
ठीक है, हमने ये देखा है रिलायंस में कैसे हो गया। आज जो मुकेश अंबानी इस देश का सबसे अमीर आदमी है, इसलिए नहीं है कि वो कंपनी से इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए कि उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ है। ठीक है, और वो जो है 35% शेयर्स अपने पास रखा है या 40% शेयर्स अपने पास रखा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। तो ये जो है अगर आपकी नेटवर्थ अगर समझनी है तो ये बहुत अच्छा नेटवर्थ बनाने का साधन है। जो 7वां बेनिफिट है या 8वां बेनिफिट है, मैं काउंट तो नहीं कर रहा था, लेकिन जो 8वां बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी इक्विटी, आपकी कोलेट्रल हो जाती है, आपकी एसेट हो जाती है। कल को अगर आपकी कंपनी 5 साल के बाद लिस्टिंग के, 10 साल के बाद लिस्टिंग के, अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे अपनी शेयर्स फर्दर डाइल्यूट नहीं करनी है और शेयर्स मार्केट में नहीं देना है, अपना परसेंटेज ऑफ शेयर्स को और ज्यादा कम नहीं करना है, लेकिन आपको और पैसे की जरूरत है, मे बी अभी आपके पास फिजिकल एसेट्स उतने नहीं है जितने पैसे की आपको जरूरत है, तो आप इस इक्विटी को जो है, जो आपकी एसेट बन चुकी है, इसको आप प्लेस कर सकते हैं एनबीएफसी के साथ या बैंक्स के साथ, और इस पे आपको लोन मिल सकता है। तो आप समझिए आपने क्या किया, इस इक्विटी सर्टिफिकेट इशू करके अपनी कंपनी को लिस्टिंग करा करके आपने अपने लिए कोलेट्रल खड़ा कर दिया, आपने अपने लिए करेंसी खड़ा कर दिया, आपने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर ली, आपने अपनी कंपनी की जो विजिबिलिटी है और मार्केट ब्रांड है उसको बड़ा बना लिया, आपने अपनी कंपनी में क्रेडिबिलिटी बढ़वा ली, और क्या किया, आपने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर ली, आपने फंड रेज कर लिया और अपने कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ा दिया। जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको अनलॉक कर दिया। अभी तक कंपनी की वैल्यूएशन किसी को पता नहीं थी, अब कंपनी की वैल्यूएशन अनलॉक हुई। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो किसी व्यक्ति को इतनी ज्यादा फायदे दे सके। तो मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी में अगर डेट और इक्विटी का अच्छा समन्वय हो, अच्छी कॉम्बिनेशन हो, तो मेरे ख्याल से जो है ये वो जो कंपनी है उसके ग्रोथ को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर विकास के रास्ते पे जाना है तो मेरे ख्याल से बिना लिस्टिंग कराए आपको वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर हम कहते रह जाएंगे इसने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, उसने इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया, ये डिमांड करने का कहीं अंत नहीं है। हमने 20-18% भी इंटरेस्ट रेट का समय देखा है, उस समय भी लोग इंटरेस्ट कम करने की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमें ये रास्ता देखना है कि भाई ठीक है, ये कंस्ट्रेन है, ये रुकावट है, अब कौन सा एक अच्छा साधन बनाया जाए जिससे ये जो कंस्ट्रेन है, जो ये परेशानियां हैं, इसका सॉल्यूशन निकल सके। और सॉल्यूशन हमें ऐसा निकालना है कि हम जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। आज इस विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनी है उसमें एक चीज कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये वो सारी की सारी कंपनियां लिस्टेड। आप नाम लीजिए, वो कंपनी लिस्टेड मिलेगी आपको। आज एप्पल कंपनी है, आप लोग एप्पल मोबाइल की फोन यूज करते हैं, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.9 ट्रिलियन। बताइए आप, $1.9 ट्रिलियन आप कैसे संपत्ति बना सकते हैं एज ए प्रोमोटर, जब तक आप अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कराएंगे। और ऐसा नहीं था कि वो कंपनी $1 ट्रिलियन की हो गई तो स्टीव जॉब्स जो है उसको सपना आया रात में चलो अभी लिस्टिंग करा दो, ऐसा नहीं था। वो कंपनी जब छोटी थी तो ही उन्होंने लिस्टिंग के लिए सोचा, और छोटे की लिस्टिंग किया और बड़े बनते गए। तो मेरे ख्याल से हमें जो है ज्यादा समय रुकना नहीं चाहिए, दूसरी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से एक सफल बिजनेसमैन, एक असफल बिजनेसमैन में वही अंतर है जो अभिमन्यु और अर्जुन में अंतर था। दोनों अभिमन्यु और अर्जुन जो थे ताकतवर थे, दोनों के गुरु भगवान थे। एक के गुरु जो थे वो भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण थे, और दूसरे के गुरु जो थे वो भगवान शिव थे। दोनों का नाम भी ए से स्टार्ट हो रहा था, महापराक्रमी दोनों थे। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो अल्पायु में मर जाता है, मतलब 16 साल की उम्र में उस बेचारे का देहांत हो जाता है, और दूसरा जो है वो दीर्घायु रहता है, मतलब काफी लंबे समय तक जीता है। क्या कारण था? कारण ये था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था, जबकि अर्जुन को चक्रव्यूह में जाना भी आता था और बाहर निकलना भी आता था। अभिमन्यु में इतना पराक्रम होने के बाद भी वो चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आया, इसलिए उसका देहांत हो गया। देखिए यही है, बिजनेस भी एक चक्रव्यूह है। आप जो है अपने पैसे से और शायद बैंक की फंडिंग लेकर के शायद वो बिजनेस रूपी चक्रव्यूह में जा सकते हैं, लेकिन जब तक इक्विटी रूपी ब्रह्मास्त्र आप यूज नहीं करेंगे
तब तक वो चक्रव्यूह से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और सफल नहीं हो सकते हैं। तो यही है, देखिए माइंडसेट सबका एक है। सारे एमएसएमई और बड़ी कंपनियां दोनों के प्रमोटर्स बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि धीरू भाई अंबानी बनना है कि जिंदगी भर एमएसएमई रहना है। और इसके लिए दोनों में एक ही चीज है डिफरेंस, वो ये कि एक व्यक्ति जो है लिस्टिंग के लिए जाता है और एक व्यक्ति जो है सामान्य रूप से बिजनेस करते रहता है। तो मेरे ख्याल से हमें जो है सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके ना, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो ही आप अपनी कंपनी को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। आपको मैंने बता भी दिया क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लिस्टिंग की, क्या जो है आपको पोस्ट लिस्टिंग जो है कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, और क्या जो है आपको इसके फायदे हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक और चीज हम इसमें मुहैया करा रहे हैं, बहुत फायदे की चीज है, वो ये है कि आप एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में भी जा सकते हैं। एसएमई प्लेटफॉर्म या स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से 2 साल की लिस्टिंग के बाद आप मेन बोर्ड जा सकते हैं। सिर्फ यही चाहिए कि आपकी 10 करोड़ के ऊपर की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ के ऊपर की होनी चाहिए। अगर आपने ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो बस आप एक एजीएम कॉल कीजिए, उसमें अप्रूवल ले लीजिए कि हाँ मेन बोर्ड में जाना है हमको, और ये अप्रूवल 2/3 इन्वेस्टर्स का होना चाहिए। और एक बार आपने ये ले लिया तो सिर्फ एक मामूली सा पेपर हमारे पास फाइल करना पड़ता है। हम 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको अप्रूवल दे देते हैं और आप अपनी कंपनी को एक एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड पे लेके जा सकते हैं। तो आपको मैं एक रास्ता भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां से आपको दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप एक लघु से मध्यम और मध्यम से एक बड़ी कंपनी बनते हुए जा रहे हैं, और हम आपको वही एक्सपोजर दे रहे हैं जो सारी बड़ी कंपनियों को हम एक्सपोजर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आज तक नहीं बनाया है इस देश में। आप जरूर इसका फायदा उठाइए। आपसे करवर्ध निवेदन है कि आए, और हमारा जहां तक है हमारा काम ही यही है। हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े बने, तभी इस देश का फायदा होगा। ये देश सही रूप से तभी आत्मनिर्भर हो सकती है, नहीं तो सिर्फ बात ही बनती रह जाएगी। और इसके लिए हम आपको रेड कारपेट वेलकम देंगे। बड़े बने, देश को बड़ा करें, देश का उद्धार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Ajay bhai. There are many questions coming to you, but there's one question I'm going to ask. Ghanshyam ji and Tulsiram Kayal and Ghanshyam Das ji have asked a question जो हर वेबिनार में आपको पूछा जाता है about the costing and the listing price, वो हम लोग करेंगे। इसके बाद I would want to go to Alok Harlal ka. I will introduce all you to Alok Harlal ka. We have already introduced SBI se Singla Saab. We have introduced CARE se Sanjeev ji, and but we'll go to Alok after this. But before we go to Alok, एक पोल करेंगे, और उससे पहले अजय भाई जो सवाल आपको सब लोग पूछते हैं, and उससे पहले मैं आपको एक बता दूं, which is what I always like to say, अजय भाई ने आप सबको एक प्रिपरेशन दे रहे। देखिए, अगर आप कोई भी प्लेयर डायरेक्टली अगर इंडियन टीम में नहीं अगर जाएगा, उसके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होता है। उसको पहले रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ता है, उसके बाद वो आईपीएल खेलता है, उससे वो तैयार हो जाता है मेंटली। उसकी सिचुएशन आईपीएल में एग्जैक्टली एक वनडे इंटरनेशनल के जैसे वातावरण, माहौल इंटरनेशनल प्लेयर होता है। जब आईपीएल का प्लेयर वो जब इंटरनेशनल लेवल पे वनडे खेलता है, उसकी चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह एसएमई प्लेटफॉर्म आप मान के चल सकते हैं। Am I right अजय भाई कि एसएमई प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो तैयार हो जाता है। इट्स लाइक एन आईपीएल प्लेटफॉर्म, जिसके बाद वो जाके इंडिया के लिए खेल सकता है। सो उसमें सारे वैसे ही फैसिलिटीज है, वैसे ही बेनिफिट्स है। उसमें टिकर में आपका नाम आएगा, आपका बीएससी में लिस्टिंग होएगी, सब आपको वो लगेगा। लेकिन आप में कंप्लायंस की उतनी डर नहीं रहेगी। आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और अजय भाई का टीम, they are like coach, they are like Dronacharya, they will mentor you and see to it that you are prepared for the main board. आज तक अजय भाई की टीम ने 80 से ज्यादा कंपनीज को ऐसी तरह कोच करके एसएमई से मेन बोर्ड तक लेके गए हैं। सो अजय भाई, तुलसीराम कयाल जी एंड घनश्याम दास जी का सवाल है कि what is the kind of costing और उसके लिए क्या कर सकते हैं? It's a very nice way you answer, तो आप बताइए सर।
देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा उनको कि कॉस्ट ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। जो भी कॉस्टिंग मर्चेंट बैंकर के साथ वो बैठेंगे, उसका सिर्फ उनको 20% जो है ना, वो लिस्टिंग से पहले देना है। दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। बाकी जो 80% है ना, वो उनको जो है लिस्टिंग के बाद देना है। लेकिन ये कॉस्ट जो है ना, ये कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है जिससे जो है किसी भी प्रमोटर को घबराना चाहिए। आपको जब बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग हंसेंगे कि यार ये इतना कम कॉस्ट है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देते हुए आप लोग से ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप 5 करोड़ रुपए जा रहे हैं लेने के लिए लोन, ठीक है। 5 करोड़ लोन है, हमारे बैंकर साहब भी यहाँ पे, मेरे ख्याल से 1 से 2% मेरे ख्याल से फी लगती है, प्रोसेसिंग फी लगती है, या शायद नहीं लगती होगी, हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 1 से 2% फी लगती है। दूसरा, अगर आपने किसी और को इन्वॉल्व किया तो वो भी फी लेता है। इसके साथ साथ आप जो है इंटरेस्ट पे करते हैं, EMI पे करते हैं, सारी चीजें हैं। और उसके बाद आपको सारे फंड भी रिटर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेट फंड है, वो कोई इक्विटी फंड नहीं है। आप लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो आपको वहां पे काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से आज तक मैंने किसी प्रमोटर को ये नहीं कहते हुए देखा है, बैंकर को, या शायद बैंकर उनको भगा भी दे कि भाई अगर हम जो आपसे 5 करोड़ रुपया लोन दे रहे हैं तो इसमें कॉस्ट क्या है। बस एक इंटरेस्ट फैक्टर से पूछ लेते हैं कितना इंटरेस्ट फैक्टर रहेगा, और बाकी अगर 7% का अगर आप पकड़ लें तो मेरे ख्याल से प्रमोटर समझ लेंगे कि उनको 5 साल में कितने उनको पैसे लौटाने हैं। अब लेकिन वो लोन के नियम है, वो खर्च के नियम है, आप उससे छुटकारा नहीं है, वो है। लेकिन जब हम लिस्टिंग कर रहे हैं 5 करोड़ रुपया, तो आप 5 करोड़ रुपया का फंड अगर रेज कर रहे हैं तो 5 करोड़ रुपया आपको लौटाना नहीं, ना ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। सिर्फ आपको वन टाइम जो है, जो आपको फी पे करना है, जिसका आपको सिर्फ 20% जो है, वो भी 2 ट्रेंचेज में देना है मर्चेंट बैंकर को, और काफी कम है। मैं आपको उनको बताना चाहूंगा जो भी प्रमोटर्स हैं कि काफी कम है। आप लोग हंसेंगे अगर फी वगैरह सब देखेंगे। और अगेन वन टाइम कॉस्ट है, ये नहीं है कि रिकरिंग कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट है। आप वन टाइम ये कॉस्ट है वो पे करें। मैं तो कॉस्ट इसको कहूंगा ही नहीं, ये मान के चले कि ये इन्वेस्टमेंट है इन फाइनेंशियल प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट है वेल्थ क्रिएशन, ये इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क क्रिएशन, ये इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंशन, ये इन्वेस्टमेंट है एक्विजिशन, ये इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट है मार्केटेबिलिटी, मार्केटिंग का, ये इन्वेस्टमेंट है विजिबिलिटी का, ये इन्वेस्टमेंट है क्रेडिबिलिटी का, ये इन्वेस्टमेंट है ट्रांसपेरेंसी का। और अगर आप ये सारे कंपोनेंट को पकड़ ले तो आपको पता चलेगा कि आप तो कुछ खर्च ही नहीं कर रहे, आपकी फ्री में लिस्टिंग हो रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और आपको पता चलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि आप उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रिलायंस जब लिस्टिंग के लिए आया था 11 करोड़ की मार्केट कैप में, तो मे भी उसने 5 लाख रुपया खर्चा किया होगा 1980 में। आज उस खर्चे से उसने 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप बनाई, 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप। अब आपको ये सोचना है कि वो 5 लाख रुपया नहीं अगर वो खर्चा करता था तो शायद ये 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप नहीं बनती थी। तो आपको ये समझना है कि आज अगर हम छोटा कॉस्ट डाल के हमको इतनी सारी चीजें मिल रही है जिससे हमारा एक विकास के रास्ते पे हम अग्रसर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रमोटर को जरूर सोचना चाहिए, जरूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। Wonderful. Thank you so much, Tulsi Ram ji and Ghanshyam Das ji. I think your question on listing cost is covered. So let me come back to introduce you to Alok Harlalka. As I said, you know, from SBI, we have already talked. Here we have said, before Alok comes in, because he's going to talk, there's a small poll. How many of you have your company structured? How many of you have got your company structured? How many of you got only equity? How many of you got debt? And how many of you got a low level, low debt and high equity? So your company must be currently structured in a certain fashion. आप में से सिर्फ इक्विटी में किए होंगे, पीपल आपने पार्टनर्स रखे होंगे, किसी ने बैंकों से या अलग जगह से आपने डेट लिया होगा, किसी ने लो डेट हाई इक्विटी लिया होगा। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज द चॉइस आप लोगों ने चूज किया है? इफ यू कुड चूज, एंड देन आई वुड गो टू आलोक, बिकॉज दिस क्वेश्चन is directly going to be answered and helped
by Alok in answering, because Alok runs a merchant banking company called GreatX, which is organized this. Arvind, have we got the answers? Arvind ji, answers आ गए? Perfect. 50% को यही लगता है कि एक सही कॉम्बिनेशन होनी चाहिए इक्विटी और डेट की, और एक वो जो कि सही है, और एक सिर्फ हाई डेट में अगर देखें हमारे बीच में 27% जो उनको है हुआ हाई डेट, 9% are on a low debt. So, you know, people who are in high debt, people who are in low debt, and who do not have they must come and talk to Alok. 50% think that an appropriate combination of debt and equity, and therefore I come to Alok, to you. Alok, you are here with us. Yes, so sir. I'm going to talk to you. Let me tell you something about Alok. He looks very young. He is very young. He looks very young, and he is very young. But Alok is, by the way, has got about 25 years of experience. Yes, Alok की खुद की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कार्ड है. ही इज नॉट ओनली अ मर्चेंट बैंकर, इसके साथ साथ उसकी खुद की स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो बीएसई में उसकी कार्ड है. ये छोड़ के आलोक फैमिली has been into has got a listed entity. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टेड कंपनी है. So Alok has a company which is listed. Alok has a company along with Arvind. He's got a stock broking company, and Alok is also a director in Indian Investment Bankers Association of India. ये जितने भी मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये आपके लिए, हमारे लिए इक्विटी जुगाड़ करके देते हैं, राइट? दे गेट अस द हिंदी वर्ड जुगाड़, दे गेट अस द मनी, और वो आलोक करता है. आलोक, टेल अस समथिंग अबाउट द एमएसएमई में लिस्टिंग में, एसएमई लिस्टिंग में आप कैसे हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो लिस्टिंग के बाद आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बताएं. Please, Alok. Yeah. Thank you. Thank you, Sudeep sir. Thank you so much. Am I audible? Yes. Thank you so much. So first of all, I welcome you all today in the webinar. I want to give thanks Mr. Ajay Thakur. I welcome him, BSc SME and Startup Head, and I welcome DGM Vinod Singla, DGM SBI Jaipur Circle. I welcome Sanjeet Kumar, CEO Care Advisory, and I welcome Arun Agarwal, Executive President 40. And obviously, Sudeep, thank you so much, sir, for your wonderful introduction of mine. So, friends, let me introduce myself in a small way. My name is Alok Harlalka. I am the Managing Director of my company called GreatX Corporate Services Private Limited. हमने आज तक 20 companies listing हमने SME में करवा दिए हैं. And this business I am doing from last 7 years professionally in my company name. And we have one stock broking arm also जो अभी सुदीप सर ने बताया. So this is the small profile of mine, and I am based out of Mumbai. We have our this family group family company run, you can say. Arvind is my elder brother, who is also there on the Zoom right now. So friends, जो सुदीप सर ने बताया कि how we help the MSMEs for the listing and the post listing. So our job is to that कि जो भी स्मॉल कंपनीज हैं, जो अजय सर ने बताया कि जो भी क्राइटेरियाज हैं बीएससी एसएमई लिस्टिंग करवाने के लिए, उस क्राइटेरिया में जो भी कंपनियां फॉल करती हैं, उन कंपनियों को हम लिस्टिंग करवाने के लिए जो हमारा हेल्प, जो हमारा प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है कि हम इनिशियली वी आर साइनिंग द मैंडेट. हम एक स्मॉल मैंडेट साइन करते हैं, विच इज जस्ट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग देन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स एंड what we are going to do. हमारी क्या job responsibilities है, that is mentioned in that agreement. So the point is that जो हम MOU बनाते हैं, that is the part of our due diligence, because कोई भी स्मॉल कंपनीज को लिस्टिंग करवानी होती है तो उन्हें एक मर्चेंट बैंकर लाइक मी अपॉइंट करना पड़ता है, और उस मर्चेंट बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी जिसका IPO हम लेके आने वाले हैं उसका पूरा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं. लाइक जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर कम प्रमोटर होते हैं, उनका पूरा हम लोग पूरा डिटेल चेक करते हैं. कंपनी जो भी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, कंपनी है जिस भी डेट से प्रोप्राइटरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई या पार्टनरशिप फॉर्म में स्टार्ट हुई है या कंपनी है, उस डेट से लेके हम आज तक का पूरा हम उनका पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि एज पर द
लॉ उन्होंने उनका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कोई भी तरह का लाइसेंसेज है, कुछ भी है, तो उन्होंने पूरा फुलफिल किया है कि नहीं है। एंड एज ऑन टुडे जो भी जहाँ भी उनका प्रेमाइसेस है या फिर उनके जो भी लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं फैक्ट्री के लिए कुछ भी, तो ऑल द ड्यू डिलिजेंस सारा हमको करना पड़ता है। एंड जैसे कंपनी कोई बनती है तो फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन आज तक कंपनी ने जितने भी शेयर इश्यूज किए हैं वो प्रॉपरली वो है हुए हैं कि नहीं है, उसमें यदि कुछ मिस्टेक्स, कई बार हम लोग सम प्लेसेस वी फाइंड सम मिस्टेक्स, तो उन सब चीज़ों को हम ठीक करवाते हैं। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर इज दैट कि जिस कंपनी का हम आईपीओ लेके आते हैं उस कंपनी की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस हमको करनी पड़ती है। एंड देयर आर सो मेनी एजेंसीज जो हमको अपॉइंट करनी पड़ती है, लाइक NSDL, CDSL, रजिस्ट्रार, लीगल, पीयर रिव्यू ऑडिटर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, असबा सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ये सब एजेंसीज को हमको अपॉइंट करना पड़ता है, विच इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर। बिकॉज इन सब लोगों से हम एक रिपोर्ट लेते हैं इंडिविजुअली, और उनकी रिपोर्ट के बाद में हमें एक अपनी रिपोर्ट एज ए मर्चेंट बैंकर हमें ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, विच इज द कंपलसरी। आफ्टर दैट मतलब ये जो पूरी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये बेसिकली हम एक बुक बनाते हैं विच कंटेन्स मे बी 300 और 400 500 पेजेस ऑफ बुक्स वेयर द इंटायर इंफॉर्मेशन विल बी देयर। कंपनी कोई लाइबिलिटी होती है, कोई स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, कोई लीगल केस है या प्रमोटर के ऊपर में कुछ मैटर है, वो सारी चीज़ों को हमको इस DRHP में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। DRHP फुल फॉर्म इज ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि हम एक्सचेंज में फाइल करते हैं। वो जब हम एक्सचेंज में फाइल करते हैं, आफ्टर दैट एक्सचेंज अपनी तरफ से पूरा एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं विच दे मेक अराउंड 7 to 8 वर्किंग डेज। उसके बाद में दे सेंड एक ऑफिशियल साइट विजिट होती है जो एक्सचेंज अपनी तरफ से करता है, जो कंपनी के ऑफिस में और उनकी जो कोई फैक्ट्री है या कोई साइट है तो वहाँ पे साइट विजिट होती है। आफ्टर दैट रिपोर्ट इफ दे फाइंड एवरीथिंग इज फाइन, तो एक्सचेंज की तरफ से एक इंटरव्यू कॉल होता है जहाँ पर कंपनी का MD या CFO जिनको भी बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज है उनको हम लोग बुलाते हैं वहाँ पर। 15 से 20 मिनट की या हार्डली हाफ एन आवर की इंटरव्यू होती है। वो कंपनी के जो एक्सचेंज की तरफ से जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग कुछ सवाल होते हैं लाइक आपका बिजनेस क्या है, व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, कितने साल से कर रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी है, क्या प्लानिंग है आपको, और व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ लिस्टिंग। ये सारे डिस्कशन उनको एक बार होता है जो 15-20 मिनट हाफ एन आवर लगता है हार्डली। आफ्टर दैट इफ दे फाइंड एवरीथिंग इज फाइन देन एक्सचेंज गिव्स एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आफ्टर द मीटिंग एक अप्रूवल मिलता है एक्सचेंज की तरफ से जहां पर वो परमिशन मिलती है कि नाउ दिस कंपनी कैन गेट लिस्ट। सो आफ्टर दैट लिस्टिंग परमिशन फ्रॉम द एक्सचेंज, द डे जिस डेट का हमको वो अप्रूवल मिलता है उस डेट के बाद से 1 साल के अंदर में हम कोई भी दिन अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द लिस्ट आफ्टर दिस अप्रूवल। मतलब आज समझ लीजिए हमको अप्रूवल मिला है, हम 2 दिन बाद इमीडिएट उसका IPO कर सकते हैं या एटलीस्ट मैक्सिमम इन अनदर 1 ईयर हम अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं। तो वो जब हमको अप्रूवल मिलता है तो समझिए हमने जब डिसाइड किया तो हमको एक पेपर एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है जो कि हमारा स्टैट्यूटरी पार्ट है। सो जिस दिन हम पेपर में ऐड निकालते हैं तो मिनिमम 3 दिन का वर्किंग डे का गैप होना चाहिए लिस्टिंग की डेट ओपनिंग का, इशू ओपनिंग का एंड पेपर एडवर्टीजमेंट का। तो लिस्टिंग हमारी मिनिमम IPO जो हमारा मिनिमम 3 दिन के लिए खुलता है वर्किंग एंड मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है पहले ही बिफोर द डेट फाइनलाइजिंग। जिस दिन हमारा इशू क्लोज होता है दैट वी कॉल लाइक टी फॉर टाटा टर्म। सो T+6 जिस दिन हमारा इशू क्लोज हुआ दैट वी कॉल T+6th वर्किंग डे आवर कंपनी कैन गेट लिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग जो भी हमारी कंपनी जो लिस्ट होती है तो जो अजय सर ने बताया कि जो भी हमारा कॉस्ट एक्स होता है 20% आपने पहले दिया और 80% जो रिमेनिंग अमाउंट है जो एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ता है फॉर एन IPO, वी टेक डायरेक्टली दैट 80% अमाउंट फ्रॉम दैट एस्क्रो एंड बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट we always transfer to the company. That is how the process for the listing. And to complete the entire process, what I think that it generally it takes 2 to 3 months for the listing. It depends on the company also that how fast they are giving the document. तो 2 से 3 महीने में लिस्टिंग हो सकती है एंड मैक्सिमम 4 महीने में लिस्टिंग जनरली हो जाती है।
दिस इज द प्रोसेस फॉर द लिस्टिंग। और इसमें जो आपने जो सुदीप सर ने पूछा था कि पोस्ट लिस्टिंग हाउ वी हेल्प द कंपनी, सो ये तो हमने आपको एक प्रोसेस बताया फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के व्हाट आर द प्रोसेस। नाउ कम टू द वैल्यूएशन पार्ट विच जनरली जहाँ पर चीज़ें अटकती हैं कि वैल्यूएशन में कैसे, क्योंकि अल्टीमेट पोस्ट लिस्टिंग जो है कंपनी का ग्रोथ पाथ होता है। आज कंपनी कोई भी आईपीओ लेके आ रही है तो बट नेचुरली उनका प्लान है कि हम 2 साल में या 3 साल में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमारा ये होने वाला है, 2x 3x हो जाएगा हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी, आई थिंक 4x 5x हो सकता है। सो ये प्रोसेस तो हमारा एक फ्यूचर का, बट जब हम लिस्टिंग करवाने जाते हैं तो हमारा वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एसएमईज अटकती हैं कि हमको, क्योंकि आज जैसे अजय सर ने बताया, जैसे सर ने बताया कि शेयर हम लोग बंद डब्बे में रखते हैं, कोई भी आदमी अपनी कंपनी का शेयर की सूरत भी नहीं दिखता शेयर सर्टिफिकेट की। जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं देन वी ऑलवेज कम टू दैट कि हमारा वैल्यूएशन इतना कम क्यों है। तो एसएमई के अंदर में जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग दैट जो हम इन द स्टॉक मार्केट बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक्स में जो हमारा रहता है उसके बेसिस पर ही हमको वैल्यूएशन मिलती है। कई बार ऐसा होता है जो हम लोग कई आई थिंक कुछ अटेंडेंस के होंगे भी ऐसा कि भाई उनका टर्नओवर प्रॉफिट जो है बुक्स में लेट से 2 करोड़ रुपया है, राइट, एंड उनके बुक्स में एसेट जो है बुक्स की एज पर बुक इट इज मे बी 1 करोड़ बट एक्चुअल वैल्यू मे बी 20 करोड़। क्या ऐसा होता है? वी फाइंड सच काइंड ऑफ कंपनीज। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल हमने आपके बुक्स में आपका 2 करोड़ का पैट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड वी वैल्यू द कंपनी लेट्स से 6x 6 पी मल्टीपल दैट ऑलवेज, जो मैंने कहा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर ही वैल्यूएशन होता है, तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6 12 crore is your valuation. So to carry a listed company, promoter cannot hold more than 75%, तो 25% का डायलूशन कंपल्सरी होता है इन द आईपीओ, राइट। सो आप समझिए 12 करोड़ का हमारा वैल्यूएशन हुआ, 100% 25% इज कमिंग 3 करोड़, तो 3 करोड़ रुपए का हमारा आईपीओ आता है जनरली, क्योंकि हम जैसा हम फंड रेज करने जाते हैं तो हमको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं जानता है, राइट। जो भी आपके बिजनेस सर्किल वाले हैं वही लोग आपको जानते हैं, बट इन द इक्विटी मार्केट मतलब एज पर द इन्वेस्टर साइड तो वहाँ पर आपको कोई नहीं जानता है। तो इनिशियली व्हेन यू वांट टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट देन आपको वैल्यूएशन हमेशा कम ही मिलेगा, बिकॉज नाउ यू आर इंटरिंग इनटू द मार्केट। तो एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू द मार्केट आपको वैल्यूएशन कम ही मिलेगा। आफ्टर द लिस्टिंग आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो आज समझ लो कि हम बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ का आपने प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 6 12 करोड़ इज योर वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, but after the listing when your profit goes up from 2 crore to 3 crore, then P multiple will not be 6, it may be 7 8 or 10 depending on the industry which you are in. So इस तरह से जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस बुक्स में बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रेजुअली आपका मल्टीपल वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो आने वाले समझिए आज आप 2 साल 2 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हो, 2 साल में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी 5 करोड़ का हो गया, देन आपका वैल्यूएशन 5 करोड़ पैटेजी होता है, तो यू मे गेट मल्टीपल ऑफ 12 और 15 लाइक दैट और मे बी 20। तो आप समझो 70 से 80 करोड़ या 100 करोड़ का मार्केट कैप आपका 2 साल बाद हो सकता है। तो आज आप 25% में 2 करोड़ पर निकाल रहे हो, एंड आफ्टर 2 years आप अनदर 5% शेयर वैल्यू करते हो, यदि 100 करोड़ का मार्केट कैप यदि है तो 5% इज 5 करोड़, यू कैन रेज अगेन बाय वे ऑफ डायलूटिंग अनदर 5% ओनली। So this is the way how the stock market works. When you enter into the market, you will not get a good value. Once you list your company, gradually, depending on your performance, if the graph goes up, obviously your market cap will also goes up. That is the way SME works basically. So this is that. So one more thing I want to say, which is very important, that there are so many companies. I think must be some entities are listening to us. That is this the right time? Because अभी जैसे कोविड में राइट नाउ काफी जगह में लोगों का भी परफॉर्मेंस का इशू हुआ है, मतलब टर्नओवर हैव गॉन डाउन, प्रॉफिटेबिलिटी हैज आल्सो गॉन डाउन। So people will ask us कि is this the right time to go for the listing? So what I would suggest, this is the only right time, because I know today you are earning let's say 2 crore rupees. Last year, let's say 3 crore rupees. Again, you have to go another to reach another 3 crore. आज 2 crore है, अगले साल 3 crore करना है. You have to wait for another 1 year. So after 1 year, same thing will happen.
today the valuation what we are talking multiplied by 6, 2 into 6. So again after 1 year also 3 into 6 you will get. So that but today if you list your company today at the PAT of 2 crore, then after 1 year when you have a PAT of 3 crore, today the multiplier you are getting 6. After listing of 1 year, you may get a multiple of maybe 7, 8 or 10 something like that. So आपका 3 into 10 30 crore का वैल्यूशन हो जाएगा after the listing एक साल के बाद में. तो दिस इज द वे. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट जितनी भी कंपनीज है उनको ये हमारा सजेशन है कि दिस इज द ओनली राइट टाइम टू गो फॉर द लिस्टिंग. एंड आप लोगों को मैं बताने में मेरे बहुत बड़ा गर्व, आई एम प्राउड टू से इन दिस कोविड सिचुएशन वी हैव गॉट लिस्टेड वन कंपनी कॉल्ड बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड. Okay, this company is based out of Mumbai. IPO size was 2.46 crore and the IPO price जो था वो हमारा सिर्फ 37 रुपीज था. लिस्टिंग डेट वाज 30 जून 30 जून 2020 को हमारी लिस्टिंग हुई है. कोविड में भी हमने एक IPO किया, राइट? एंड IPO प्राइस वाज 37. टुडे यू कैन सी द प्राइस, इट इज मोर देन 51 in a span of only 7 to 8 days. So why this has happened, we need to understand. When you are going for a listing, people do not आपको इन्वेस्टर मार्केट में कोई नहीं जानता है. आप जब लिस्ट करवा लेते हो, then people will start creating trust on you. Then depending on your performance, they will give you the better valuation. So so this is the way how the most of the SME works. आज हमने लास्ट 2 साल में जितनी भी कंपनी ग्रेटेक्स ने अपने मैंने जितनी भी करी है, all those companies are more than the IPO price. सारी कंपनी आज भी प्रीमियम पे है. Why? Because there is the valuation what we have done for them. That is again that 5 multiple or 6 or 7 something like that, depending on the investor, how we are getting the investor, जब किस तरह से कन्विंस करते हैं प्रमोटर. दैट इज द थिंग. सो ये हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि हम इस तरह से सबको गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से जाना चाहिए. आज आपको भले कम मिल रहा है, लेकिन if you are performing in the books, then definitely you will get better valuation after the listing. For that you have to give some time. Immediately it is not going to happen at all. तो लिस्टिंग तक का हमारा ये प्रोसेस हुआ. आफ्टर द लिस्टिंग जो हम कंपनी को और थोड़ा गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बिकॉज लिस्टिंग इज नॉट द ओनली आवर ऑब्जेक्टिव कि हम लिस्टिंग करा करके कंपनी को छोड़ी नहीं है. कंपनी आज के मार्केट कैप उसका 10 करोड़ का है, तुमको उसको 200, 300, 500 करोड़ का मार्केट कैप पहुंचाना है, डिपेंडिंग ऑन द स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो हमारा वो एम रहता है कि आज हम लिस्टिंग करवाए हैं कंपनी की, तो उसके बाद में कंपनी जैसे जैसे परफॉर्मेंस कर रहा है इन द बुक्स, तो उसका मार्केट क्या बढ़ेगा. जो इसलिए मार्केट मेकर का कॉन्सेप्ट भी होता है जो मैं आपको बातें बताता हूँ. तो मार्केट मेकर हैज एन ऑब्लिगेशन टू क्रिएट द मार्केट एंड क्रिएट द लिक्विडिटी फॉर द कंपनी एज अ मार्केट मेकर. सो वो मार्केट मेकर का रोल होता है, वो मार्केट क्या बढ़ाता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. सो वो परफॉर्मेंस जब मार्केट क्या बढ़ाता है, तो उसके खाली मार्केट क्या बढ़ाने से भी इन्वेस्टर नहीं आते हैं. हमको एक इक्विटी मार्केट में भी हमको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है. मतलब एडवर्टीजमेंट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टर मीट, काइंड ऑफ कॉन कॉल, ये सब चीज भी हमें करवानी पड़ती है. उसके बाद में ही कंपनी का ब्रांड इमेज क्रिएट होता है एंड पीपल विल स्टार्ट लुकिंग इन द कंपनी. हम जैसे हमने इन्वेस्टमेंट हमने गोवा में भी की है, हमने दुबई में भी की है, सिंगापुर का भी हमारा प्लान था, समहाउ बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया. तो हम हमारे पास जितनी भी कंपनियां जिनको हम मेंटर करते हैं, वी आर ट्राइंग टू टेकिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन ऑल द इन्वेस्टर्स जितने भी मतलब क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं. देयर कॉस्ट इज वेरी मिनिमम. मतलब 40 से 50 हज़ार का हमारा इवेंट होता है. मतलब हम 4-5 कंपनियों में मिला के काम करते हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करके 40 to 50,000 रुपीज कॉस्ट के अंदर में एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है. वेयर द प्रमोटर कम्स, दे स्टार्ट सेइंग देयर कंपनी हमारे कंपनी में क्या है नहीं है. तो इस तरह की एक्टिविटी हम करते रहते हैं. तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली इन्वेस्टर भी कंपनी में आता रहता है एट द हायर वैल्यूएशन. दैट इज द आइडिया. तो दैट इज हाँ, तो ये हमारा प्लान होता है कि हम इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाएं, जो कंपनी को 2 साल में हम उसको 2 साल या 3 साल या 5 साल में कंपनी को हमको एक्स लेवल पे पहुंचाना है. और उस मार्केट कैप में हम उसका प्लेसमेंट करवाते हैं. तो वहाँ पर जो भी हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है 2 to 5-7% की जो भी हम प्लेसमेंट करवाते हैं हाई रेट में, वो हमारा मेन रिवेन्यू है. दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट, नॉट टू जस्ट लिस्ट द कंपनी. दिस इज हाउ वी सपोर्ट मस्ट कंपनी. यस सर. आई थिंक आलोक यू हैव, मतलब आप ये टाइम में सबको सब समझाने की कोशिश बहुत अच्छी तरह की. आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट. फ्रेंड्स, अगर आपको आई थिंक आलोक ने समझा दिया कि एज अ पार्टनर, एज अ गाइड, एज अ कोच, एज अ मर्चेंट बैंकर, आलोक आपको लिस्टिंग से पहले पेपर वर्क में हेल्प करेंगे, लिस्टिंग के दौरान
वैल्यूएशन कैसे अनलॉक करना है, उसके लिए रोड शो करना है, जैसे वो दुबई में कर चुका है, गोवा में वो करता रहते हैं। आलोक की टीम, आलोक और अरविंद, इनके नंबर्स हम आपको शेयर करेंगे, ये करते हैं। और सिर्फ वहां तक नहीं, लिस्टिंग के बाद आलोक ने आपको यहां तक समझाया कि लिस्टिंग के बाद भी एक काम होता है मार्केट मेकर का, राइट? वो भी आलोक करता है, राइट? तो आलोक डज द एंटायर सपोर्ट। आलोक, आपके लिए एक सवाल है, ये हमारे एक दोस्त इधर जो है विवेक सहाय ने पूछा है, आपका क्या व्यू, आपका विवेक सहाय का जो सवाल है, आपका फूड प्रोसेसिंग और सी फूड का जो कंपनी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से अगर सी फूड वाली कंपनी है, क्या वो लिस्टिंग पे जा सकती है? यस सर, यस सर। तो विवेक, आपका सवाल भी हैज बीन आंसर्ड बाय आलोक। आलोक, और एक सवाल है बोधिसत्वा से। ये सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है, जो ऑलरेडी अजय भाई ने ये सवाल की आंसर हालांकि कर चुके हैं, बट आई एम मेकिंग इट टू यू आलोक। बोधिसत्वा का सवाल है, ये सिचुएशन जब कोविड सिचुएशन में बिजनेसेस नीचे हैं, टॉप लाइन नीचे है, बॉटम लाइन नीचे है, ये आंसर अजय भाई ने ऑलरेडी दे चुका है आलोक। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू बोधिसत्वा टू अंडरस्टैंड। बोधिसत्वा का सवाल है, अगर टॉप लाइन नीचे जा रहा है, बॉटम लाइन नीचे जा रहा है कोविड के सिचुएशन में, क्या ये सिचुएशन में प्राइस डिस्कवरी हो सकती है और लिस्टिंग में जा सकते हैं? यस, प्राइस डिस्कवरी भी हो सकती है। एज पार्ट ऑफ द लिस्टिंग क्राइटेरिया जो अजय सर ने बताया, इफ दैट क्राइटेरिया इज मैचिंग, ही कैन लिस्ट द कंपनी। दैट्स द टेक्निकल पार्ट। सेकेंडली, जो वैल्यूएशन वाली पार्ट जो बता रहे हैं, वो ऑब्वियसली जो हमने जो वैल्यूएशन बताया, आप सोचे ना, मैंने कोविड में जो मैंने बताया 30 जून को लिस्टिंग हुई है, यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस कोविड सिचुएशन वी हैव लिस्टेड द कंपनी। द पॉइंट इज दैट वैल्यूएशन विल बी डन, बट या मे बी जो हमको वैल्यूएशन चाहिए वो उतनी नहीं मिले, बट ऐसा नहीं है कि हमारा परफॉर्मेंस इतनी वीक हो रहा है तो हमारे को वैल्यूएशन में इश्यूज है। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन में फर्क जरूर आएगा, बट डेफिनेटली इफ द स्केलेबिलिटी इज देयर, इफ द पोटेंशियल इज देयर, देन डेफिनेटली कंपनी कैन रेज मनी। इसमें मैं सबको एक क्लू देना चाहूंगा, जो नेक्स्ट हमारा क्विज है, अरविंद आपको रन करेगा। देखिए, जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी एक फेडरल इकोनॉमी है जैसे है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी में मतलब सब लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़े हैं वो भी आ सकते हैं, जो छोटे हैं वो भी आ सकते हैं, तो जो मंझले हैं, तो वो उनके लिए भी हमने एक सिस्टम किया हुआ है जो एसएमई प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या लगता है, इंडियन इकोनॉमी कैसा है? यू नो द सवाल, कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है, सोशलिस्टिक है या फेडरल है? कैपिटलिस्टिक जैसे यूएस में हम देखते हैं, सोशलिस्टिक जैसे हमने देखा है कि चाइना, दूसरे जो पहले कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, वियतनाम, बर्मा, जो डिक्टेटरशिप में है, मतलब मिलिट्री जनता के अंदर है तो भी। और देन वी हैव अ स्ट्रक्चर, आप चूज कीजिए, व्हाट इज द राइट चॉइस दैट वी हैव। एंड आफ्टर दिस अजय भाई, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आपसे एक सवाल है, एंड देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर संजीव। Arvind, what is the poll results? Okay, लगता है मेरा क्लू अच्छा सही तरीके से नहीं दे पाया था। You see, our economy is a federal economy. जैसे हर स्टेट अपना खुद तय करता है, तो ये थोड़ा कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। So it is a yes, 85% ने जो कहा मिक्स्ड इकोनॉमी, मैं भी वही सवाल सोच रहा था, बट मिक्स के साथ साथ हम फेडरल इकोनॉमी है कि हर स्टेट अपनी खुद की तय करते हैं, अपने खुद के तरीके से तय करते हैं। I have, I'll now go back to one question that I have got, Ajay bhai. ये question भी आपने actually, Ajay bhai, you have covered. Many SMEs are afraid of going for listing, Ajay bhai, and why they are being afraid and what solution we can give. उसके बाद मेरे पास सिंगला साहब के लिए एक question है। Ajay bhai, many companies are afraid to go for listing. Why are they afraid and what can we do for them? And that's what I have replied, that, I have not been, that's I have already replied that I have never been able to understand what is the real fear. But let me tell you, the fear is a fear of compliances. No one wants to do a lot of compliances. Of course, our country is full of compliances. Even if you are in unlisted space, we have got hundreds of compliance mechanisms. Okay, the government need to understand and need to each on the number of compliances. Recently, the MD and CEO of TeamLead
has raised this pertinent question, and many of them started retweeting and forwarding all these things. So already we have got a lot of compliance structure that Government of India need to reduce as much as it can. Second thing, I think, the way the GST has come, the reason for GST to come was to reduce the tax structure. Okay, earlier we have got 100 types of tax structure. Now it has been, brought down to one. So I think going forward, we will see a reduction in the compliances. But having said that, already we have a lot of compliances out of listed space. So with listing, the compliances are not going to go up drastically. It will be lower side only onto the SME platform. But let me also tell you that post-listing, we have seen 81 companies migrating to the main board. So post-listing, the promoters have been able to understand that if they have to create a credibility, if they have to show to the world that yes, they are into growth process, their business are scalable, they want to show themselves that they are transparent, they want to show the world that yes, if you are giving me money just on the sales certificate, I am going to provide you all sort of information that can give you comfort level. And I think a little bit of additional compliances on the stock exchange should not stop the promoters from accessing the capital market. तो ये जो दिल और दिमाग अननेसेसरी जो फियर क्रिएट हुआ है ना, देखिए कहते हैं कि नो गेन विदाउट पेन. ओके, तो थोड़ा कंप्लायंसेस करके अगर आप करोड़ों अरबों रुपए का वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, अरबों रुपए का आप एक कंपनी बना रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो करना अच्छा है, ना कि आप एक कुएं में पड़े रहो और कुछ भी मत ना करो. Perfect. Thank you. I have now, before I go to Sanjeet for a one short question, there is a question for you, Alok, which has come from one of our participants. Yes, sir. The question is, this is from Vikas Sinha. How will you give valuation to a startup company? Vikas Sinha has a question. How will you give valuation? Quickly, if you can just cover, so that we can go back to Sanjeet, and then I've got to go a question for Singla sir. Yeah. First of all, I think the criteria for the startup, I think we have missed out the criteria for startup. I'm just telling that what are the criteria for startup. So criteria for startup, the company should be existence of 2 years, and company should have a positive net worth. And thirdly, company should, if company not registered under DIPP, then he must have a paid capital of 1 crore. If these criteria are there, then company can get listed under the startup, and the startup company should have the this business in terms of tech-based business should be there. Then only the startup company can get listed in the BSE startup platform. Okay, and what is question that regarding the valuation, how we value the startup. So in the startup, what has happened that basically the concept what that startup has. That depends on that. It is completely because in the most of the startups, company doesn't have the profitability at all, right? That is why the criteria is the positive net worth, not profit at all. So it is completely depend on what kind of business model, what kind of concept is there. So accordingly, we are looking for the investor. So kind of this depending again purely depend on the business concept. Then only the valuation will be done. But yeah. Obviously, this investor should be agree in such a valuation. Then only this can be done. So it is depending on the valuation which is given by the investor, and this valuation should be agreed by the promoter. Then only it can match. So mathematical calculation for valuation startup is not there. Yeah, to take that valuation officially, definitely that DCF method, which we all know, the DCF method is supposed to follow. But yeah, but we will give the valuation depending on the comfort of the investors and comfort of the promoter. When it is matched, then only we will reach that valuation. That is the process. Great. I have one quick question to Arun ji. Arun ji, आप unmute कर लीजिए. ये आत्मनिर्भर के ऊपर, sir, how can MSMEs become आत्मनिर्भर? If you could briefly tell. And then my question to Singla साहब is, sir, ये आत्मनिर्भर का जो ये और ये जो नया जो the benefits that Ministry of Finance has given,
उसमें are the any NPAs covered in any of that? So that's the question to Singla Saab. If NPAs are covered in any of this new financial benefits that has come, and उससे पहले अरुण जी थोड़ा आत्मनिर्भर के बारे में जरा हमें थोड़ा देखिए, आत्मनिर्भर जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बात चली, मैं पहले भी बताया था अभी आपको, इसमें अपने को किस तरह कोविड सेंटर बनाए गए पूरे इंडिया में, कोविड के सेंटर, उसी तरह ये आत्मनिर्भर के लिए फैसिलिटिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर लागू करना पड़ेगा, हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इनको नोडल अफसर बना के उसमें बैंक का भी वो अफसर हो, उसमें सरकार का भी हो, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का भी हो, ऐसे में इन सबको बैठा के सबको मिक्स करके नोडल अफसर बना के, और क्या चीज की जरूरत है एक्चुअल में, हम कहाँ बैक हो रहे हैं, कहाँ क्वालिटी में बैक हो रहे हैं, इंपोर्ट आइटम की चेन अपने जो इंपोर्ट आइटम करें उसमें अपने को वाचअप करना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ अपने बैक हो रहे हैं, उन सबको एक चेन बना के तो सारा सिस्टम करना पड़ेगा। मैं तो ज्यादा नहीं बोलते हुए आपको 2 लाइन में बात करना चाहूंगा पूरे इंडिया के लिए और इस कोविड के लिए, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी फिलहाल भर जमीन अभी तो पूरा बाकी। क्या बात है अरुण जी ने, अरुण जी और सिंगला जी भी बैठे हैं सब उसका, तो सबके लिए ये जरूरत है कि हमने को सबका अपना तो लाइक आप लोग का जी भी आ गए हैं, कौन अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, या आपको उड़ने के काबिल नहीं, हम जानते हैं आपके पंखों में भी उड़े है, के पंखों में भी उड़ान बाकी है। क्या बात, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। अरुण जी ने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, अपना सीरियस फाइनेंस में थोड़ा जान ला के दिया अरुण जी ने। सिंगला जी, आई हैव अ सवाल जैसे मैंने आपको किया था, एंड देन आई विल गो टू संजीत जी। संजीत जी का जो सवाल आई विल आस्क फॉर संजीत जी आफ्टर सिंगला साहब। संजीत जी को सवाल पूछूंगा कि एमएसएमईज को ये पोस्ट लिस्टिंग में केयर हमको कैसे हेल्प कर सकता है, दैट इज व्हाट आई विल आस्क संजीत जी। बट बिफोर दैट सिंगला साहब, आपके गले को काफी रेस्ट मिल चुका है, तो नाउ यू आर रेडी, वी कैन हियर समथिंग अबाउट यू। एनपीएस, have they been tackled, been cared, giving some special benefits, sir? देखिए, इसमें आत्मनिर्भर स्कीम जो गवर्नमेंट का पैकेज है उसमें भी एक एनपीए के ऊपर स्कीम है, उसकी अभी हमारे पास जो मोडेलिटीज नहीं आई हैं उसके ऊपर मैं अभी लेकिन उसके तहत भी जो है जो एनपीए अकाउंट्स है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज मिला हो बैंक्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो सभी बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर देन दैट आत्मनिर्भर पैकेज, एनपीए को टैकल करने के लिए फॉर ऑल टाइम्स वी हैव डिफरेंट स्कीम्स। फॉर एग्जांपल रिस्ट्रक्चरिंग एनपीएस को भी हम करते हैं। एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है जहाँ पे हम एसएमए अकाउंट्स को, जो कि इरेगुलर अकाउंट्स हैं, एसएमए 012 अकाउंट्स 90 डेज, तो सब अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करते हैं। 25 करोड़ तक के अकाउंट्स उसमें कवर्ड हैं, उसमें सारे काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं एमएसएमईज के उसमें कवर्ड हैं, आ जाते हैं सब्जेक्ट। लेकिन आफ्टर दैट अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो चुका है, इवन एज ऑन डेट इसकी वायबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड कि वो हमारे स्टिमुलस पैकेज देने के बाद या उसके अपने थोड़ा बहुत फंड इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद वो वायबल हो सकता है। तो वी आर सपोर्टिंग दैट। Of course, the government scheme, whenever it is notified to us and when the details come, definitely implement. So as of now, nothing has been stopped. Everything is on. Wonderful. So I think Singla Saab has taken care of all of you participants. हमारे दिल में भय होता है, डर होता है. So you know, let's have that. We have got some people who want to have raised their questions. Also, we can unmute them. They have raised questions. Let us see who has raised questions. Arvind, if somebody has a question, but before that, I will go to Sanjeet ji. Sanjeet is back, and I have a question for Sanjeet. Sanjeet ji, the question is that ये post listing MSME कैसे care का benefit ले सकता है? Care has been very nice to organize this webinar, this seminar. So we want to know from Care that you've organized along with Greatest this wonderful webinar. How can हमारे दोस्त, my friends, how can they take benefit of Care after the listing if they are going for the SME listing? Okay. So the way we are working on the Care platform, with our ratings services as well as the non-rating businesses on the advisory, research, and training,
So our intent, especially for SME segment, when you look at, is to give them a whole host of services prior to listing, post listing, and even on a day-to-day business that they manage through. So some of the services that we offer to them while we prepare them for the listing is in terms of giving them an independent research report, because that's generally a part of the DRHP package that they submit to the stock exchanges. So while they prepare those DRHP, they need an independent industry report, which is something that we provide them across. They also need a the business plan, and sometime in case they are using trying to raise funds for a particular project, then the viability of those project, assessment of that particular project. So all of those background work, we can help them to prepare the entire proposal, and which can become part of the DRHP itself. We also help them the valuation services. So in case before they go for listing, they generally like to have an idea of what is the kind of valuation that the company can fetch in the market. So we offer that services as well. Once they have already gone into the listing, they have listed themselves. The next step is in the utilizing those funds and making sure that the business that they are going to invest in is viable and they generate the kind of profits that they have expected to be. So in terms of evaluating the performance of the company on a year-on-year basis thereafter, that's where our rating team comes in, that we give them a rating because once they have raised equity, now the time is for them to leverage that equity to raise additional funds from the debt market. So whether it is a bank loan, whether it is a bonds, debentures, whatever they may look at. So that is the time when our rating teams come into play, that we provide rating, and with the help of that they can raise debt, either bank loan or the bonds and debentures. Advisory team continues to be in supporting them in terms of our various advisory products. So if they're looking at expansion further, they are looking at setting up new business verticals, they want to expand into new geographies. So all these places, they need somebody to help them with the assessment of particular geography, what is the potential of that segment, and give them a plan. So preparing a project report for various expansion that they might look at. So all of those things we can help them with. Different industries that they want to venture in subsequently, those research reports can be prepared by us and provided to them. So we position ourselves as a full-fledged advisor to the SMEs, and we would like to help them at various point in time, not just at the listing, even subsequently as well. And we look forward to hearing from them. They can always connect, because this our vertical. This is so ever expanding, and multiple different kind of issues come up, and so we are always open to new ideas, new issues which any SME clients and faces, and we'll be more than happy to look at it and find some resolution for those issues that they may face. Fantastic. I think Sanjeev ji very nicely said कि listing के बाद भी वो हमको help करेंगे, आपकी जो advisory में rating के साथ साथ advisory improve करेंगे, जिससे आपकी एक company की position अच्छी होगी, people will perceive your company in a better way, लोग आपको valuation ज़्यादा देंगे, और वो rating और वो valuation का benefit लेके बैंक से भी आप सिंगला साहब के पास जब जाओगे with a better rating and with a better valuation, I'm sure the banks will also give a lot of respect. I have now one small question, second last question, and we will be quickly having a poll, then we can have a question answers. We have 4 questions. एक सवाल है अजय भाई आपसे, रचना दिघे के तरफ से, मैं उस सवाल को बताता हूँ. आज तक 3,300 करोड़ SME में हम ऑलरेडी रेस कर चुके हैं. 322 कंपनीज हैव कम. 322 कंपनीज ने 3,000 करोड़ रेस किया. 18,000 करोड़ has been the market capitalization, and this is just in the past few years that you have done. अगर हम देखें आपका स्टार्टअप लिस्टिंग में, आपने सिर्फ दिसंबर 1.5 साल पहले आपने चालू किया, 5 कंपनी ने करीब 22 करोड़ रुपए रेस किए थे. ऑलरेडी उनकी मार्केट कैपिटलाइज ऑलरेडी 75 करोड़ रुपए उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन. 1.5 साल में 75 करोड़ की ये 5 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. 3,300 करोड़ जो रेस गया SME में, वो आज 18,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है. 322 कंपनी है. It took 150 साल लगे 5,000 कंपनी करने के लिए, and we have already achieved so much. So what is your definition of success for SMEs? Definition of success of SMEs? Yeah, because do you think
I think SME platform is very successful. See, Would you agree that the SME let me platform is successful? I have seen the question of Rachna, Dede, and I can understand from where it is coming. Let me tell you one thing. As far as the stock exchange is concerned, it's a platform, okay, where demand and supply meets, where the investors come, buy and sell the shares. Okay, that a person needs to understand. When a company is going for IPO, it's the investors who participate. So putting in it a different way or some other way is not the right approach. That is the one thing. Second thing is, a best person or a visionary promoter is one who understands how to use the different products, even if they have to pay a price. Now see, today, 3 big institutions are there on your, 4 institutions in fact are there on your platform. Okay. Number 1 is State Bank of India. Number 2 is CARE. Number 3 is BSE. Number 4 is GetX. 4 institutions are there. Okay. We all are telling that what are the products that we are providing you, what pains that we are trying to that we are taking to take you forward, and what measures we are taking to handhold you. Now a visionary promoter, what he does, he will try to explore all these products. He used to try to use these things for their benefit. And one thing one must understand, there is nothing called free lunch. Okay, so you may have to pay a little bit. It's not something which will create a big hole in your pocket. Okay, what we all are doing, that just a little bit of expenditure from your side, because we all are in business, and you can take your business to to a next level by by leveraging all the 4 institutions. So we are there for you. As far as we are concerned, we are in the service. These institutions have been created for in last 200 years for the benefit. So one need to understand whether one has to be penny wise, pound foolish, or pound wise, penny foolish. We are giving you the product whereby we are saying that get pound wise, remain penny foolish, because you are investing penny to get pound. So if you have to be pound smart, you need to spend penny. And that's how we have created an ecosystem. So leverage all of us and take the company to the next level instead of thinking about those penny that you are spending. So that if that way the promoters start thinking, nothing can stop them from getting or from becoming successful. Brilliant. Thank you. Thank you. I think Ajay, you answered Rachna's question. Rachna, I'm sure your questions are answered. All of us are thankful. We have planned, we are nearing the end of our webinar. Any questions you can always ask. We have got yes, and then comes the question. What do you think is the right time frame that somebody should be listing in the BSE SME platform? Should it be immediately? Or do you think this is not the right time after 3 or 6 months? Do you think, somebody who would be interested in the SMA listing? Do you think it is not applicable to you, or you're not interested? Ajay I had already covered that, about the Arjuna and Abhimanyu situation. So, when is the right time? I mean, Abhimanyu was in the womb when he heard and when he missed and went off to sleep. So the timing that you got to decide what you feel. When is the right time? Arvind, are we getting the answers for that? Arvind, how many more minutes for the poll to end? 5 seconds. 5 seconds. After that, Ajay bhai, wo Abhimanyu ka jo aap dusra, the other version which you said about Abhimanyu, about how he going off to the womb and going off to sleep, that if you could reiterate, that is very, very pertinent to today's level of listing and the markets. That I would request, and then we would hand over to Alok to close the webinar. And we have some questions. We'll take few questions before Alok ends. Yeah, what are the results? What are the poll results? Sorry, there is some technical issue. I will later know you this. Okay, so we have a technical issue as always. So till that time, what we will do is that
what we will do is there any questions that we have? Any open questions right now, Arvind? Arvind, do we have the questions right now? I think no, but the 3 persons are raising the hands. I am allowing them to talk. Please allow them to go talk. Anchita, do you like to say something? Yeah. Ankita, your line has been unmuted. Please ask the question, and to whom is the question directed? Okay, fine. I am allowing Umesh Pawar. Mr. Umesh. Umesh Pawarji, you have some questions? So he also on mute. उमेश पवार जी, आपका क्वेश्चन अनम्यूट कर दिया गया है. आपका कोई सवाल है? Mr. Purushottam, also you can also ask a question. Mr. Purushottam Gupta is also there. Mr. Purushottam, do you have any question? I think they all are not available right now. I don't know. Correct. Hello. So what we'll do, Ajay bhai, I think my request no, on the... One minute. He just came, I guess. Purushottam just came. Yeah. Hello. Yes, Yeah, sir. My question is that bankers giving any relief to NPA accounts for more loans, more credit facility, as per RBI or maybe government already declared, but officially the bankers not allowed the NPA account, any credit facility to the NPA account. So can Mr. Somebody can inform me that they really allowed or not? No, in fact, that scheme, as I have said earlier also, that scheme has not been, scheme have not come to us as of now. So I think the modalities have been cut down. And that 20,000 crore scheme, which I have suggested from Finance Minister, I think that is for just MSMEs. So that will cover the NPA also. Great. I think, guys, we have such a wonderful session. 1.5 घंटे ऐसे ही निकल गए. We all exchanged so many questions. I want to thank CARE. I want to thank Sanjeet and team. But before Thanksgiving from Alok, I just want one small last words from Ajay bhai. Is Ajay bhai with us? Yes, sir. Ajay bhai, as always, we've all come to listen to you to know about the SME listing. You've done this much for the economy. I would say your contribution is phenomenal. Before Alok ends it, I have to thank again Alok to Greatex. I have to thank Sanjeet. I have to thank SBI, Mr. Singla. I have to thank you, Ajay bhai, for all along being available with us. So Ajay bhai, just last few words from you. What should be done? How it should be done? And why it should be done now? I think, Sudeep, I have spoken everything. Now it's the ball is in the court of the promoters. We all are sitting here. We all are coming on these webinars to support, help, guide, and hold the promoters to take them to the next level. So I think we all agencies are there. We all are going to give you red carpet welcome. We are there to take you out of the trouble. We also understand that we are going through this unprecedented situation. But unprecedented crisis also required unprecedented thinking. Okay, innovative thinking, out of the box thinking. And I think if you have not ever thought of, leveraging these institutions, so then please move forward, leverage it, start with the scratch and take your company to the next level. So thanks a lot to all of you. Thank you. Thank you again, Ajay bhai. The story, Regi. Guys, whoever missed out the story on the Abhimanyu from Ajay bhai, you'll have to come in for the next webinar, which Alok is organizing. Thank you, Alok. Alok, the last few words, Thanksgiving. Thanks again, Sanjeev from CARE. Thanks again.